महत्वपूर्ण परंपरा है। President of Muslim Rashtriya Manch, Shri Indresh Kumar ji, renowned scholar, sadhak and Himalayan yogi, Honorable Swami Yogi Amarnath ji, they all are सभी के शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन हो रहा है। मी सर्व वारकऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं। सगळ्यांनी डावीकडे उजवीकडे बसून घ्यावं। पाचव्या ओळीपासून बसून घ्यावं।
Thank you. Thank you very much.
Thank you. Namaskar. I welcome each one of you for the inaugural session of 9th World Parliament of Science, Religion, Spirituality and Philosophy. On behalf of MAEER's MIT World Peace University, Pune, Bharat, we all have gathered here to promote the culture of peace in the world based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam. ये समारोह और इस समारोह के लिए उपस्थित सभी अतिथि गणों का, श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हम सभी यहां सम्मिलित हुए हैं। 9वां वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी के इनॉग्रल सत्र में हम सभी एक बहुत ही अलग अनुभव आज करने वाले हैं। It is really important to understand and know that why we have gathered here today. Kashi, also known as Banaras or Varanasi, is one of the oldest continuously inhabited cities of the world, with recorded history of over 4,500 years. Kashi is amongst the holiest cities in India, situated on the banks of river Ganga. Kashi is home to Shri Kashi-Vishwanath Temple, Sankat Mochan Hanuman Mandir, Durga Mata Mandir, Kal Bhairav Mandir, and many other sacred places of worship. Kashi has numerous ghats on the riverfront, enabling millions of devotees who visit here every year to have easy access to the holy river Ganga and perform their sacred rituals. My friends, मैं दोनों भाषाओं का यहाँ पे उपयोग करना चाहूँगा because I see dignitaries from all parts of the world, all parts of the nation and all parts of Maharashtra. So it is going to be a beautiful galaxy of the audience here, and hence I'll be using both the languages. My friends, I extend a warm welcome to you all on the 9th World Parliament of Science, Religion, Spirituality and Philosophy to promote the culture of peace in the world based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam. Friends, this is one of the most cherished projects that we have seen undertaken by the visionary Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And we all believe that this beautiful knowledge corridor has lived up to the dreams and scientifically oriented spiritual aspirations and expectations of billions of Indians and the scholarly community. With this, my friends, let us begin the journey of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. And to mark the beginning, I would like to request the Honorable Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Dr. Milind Pandey, to address the gathering. स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी आज का एक बहुत ऐतिहासिक, बहुत हिस्टोरिक इवेंट होने जा रहा है। मैं माननीय इंद्रेश कुमार जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, प्लीज़ आप मंच पर पधारने की आपसे विनती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। तालियों के गूंज में हम माननीय इंद्रेश कुमार जी, प्रेसिडेंट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच न्यू दिल्ली, इनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं।
मैं जैसे बात कर रहा था कि ये बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिक एक इवेंट, एक कॉन्फ्रेंस, एक परिषद, एक संगोष्ठी यहाँ पे होने जा रही है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ पीस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द इथॉस एंड कल्चर। G20 की बात पूरे विश्व में हो रही है। इस G20 के माध्यम से उनका जो इथॉस है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम, इसको ध्यान में रखते हुए ये परिषद का आयोजन यहाँ पे हुआ है। As I said, this is a very epoch-making historic conference, the World Parliament on Religion, Spirituality, Science and Philosophy. The entire concept, योगी अमरनाथ जी, मैं सम्माननीय अतिथि स्वामी योगी अमरनाथ जी का भी यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, आप मंच पर पधारने की आपसे विनती है। योगी अमरनाथ जी का हम तालियों के गूंज में यहाँ पे स्वागत करेंगे। My friends, as I said, this is the very epoch-making historic parliament conveying the very own message of harmony, peace and humanity. To promote the culture of peace in the world, that is the concept of this 9th World Parliament. जब मैं 9th World Parliament की बात कर रही हूँ, इसके पहले 8 World Parliament हो चुके हैं। 1996 to 2022 ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। 2022 में 8वां वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था। लगभग अभी 26 साल और आज का ये 27वां साल जहां पे 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट हो जाना है। 1996 में पहला वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ, उसके बाद 1998 जिनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस और कई ऐसे वर्ल्ड पार्लियामेंट पुणे में और पुणे के बाहर में हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम ये 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो जा रहा है। नॉलेज कॉरिडोर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने रखा है सर, द ट्रांसफॉर्मिंग पिलिग्रिमेज सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू द डिवाइन नॉलेज सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंतर्गत आलंदी, अजमेर, अमृतसर, अयोध्या, बद्रीनाथ और ये काशी विश्वनाथ, नेटवर्किंग ऑफ द पिलिग्रिमेज सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रवास है। और बहुत अच्छा कहा है कि गौ, गाय, गंगा, गौरी शंकर और गिरिराज हिमालय, इसकी पूजा यहाँ पे होती है। और इसी ऊपर एक वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था, गाय, गंगा और गिरिराज हिमालय, इसके नाम से डॉक्टर कराट साहब ने यहाँ पे किया था। ये ट्रांसफॉर्मिंग पिलिग्रिमेज सेंटर्स के बाद विश्व शांति का सबसे बड़ा गुंबद पुणे स्थित निर्माण हुआ है। पुणे के MIT के एक प्रांगण में विश्व शांति का सबसे बड़ा गुंबद निर्माण हुआ है और जिसके विश्वकर्मा, जिसके रचनाकार, द कंसेप्चुअलाइज एंड क्रिएटेड बाय विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराट सर। द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट डोम by the great visionary philosopher, जिनको विश्व विज्ञान दार्शनिक के उपाधि से सम्मानित किया गया है, जैसे डॉक्टर विश्वनाथ कराट सर ने ये विश्व शांति का सबसे बड़ा गुंबद पुणे में निर्माण किया है, जो कि भारत माता को समर्पित है। फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी, दिस वर्ल्ड पीस डोम is the spiritually oriented scientific laboratory, शांति की प्रयोगशाला जिसको कहा जाता है। and this is happening first time in the known human history for establishing the peace loving holistic global society.
इसको भारत माता का सांस्कृतिक धरोहर कहा गया है, इसको मदर इंडिया टेम्पल फॉर पीस ऐसा कहा गया है। और परम आदरणीय करण सिंह साहब जब वो वर्ल्ड पीस डोम में थे, उन्होंने बोला था कि एजुकेशन का ताजमहल कराट साहब ने वहां पे बनाया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की जो फिलॉसफी है, जो डॉक्टर कराट सर ने रखी है, द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू साइंस, संत ज्ञानेश्वर टू सेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा ये प्रवास है। और उसी प्रवास के अंतर्गत ये 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट यहां पे होनी जा रही है। दो बोल मिठास के भी क्या कमाल दिखाते हैं, दो बोल मिठास के भी क्या कमाल दिखाते हैं, सुनते हैं कान और चेहरे खिलखिलाते हैं। इसी भावना के साथ आज हम सब माननीय अतिथियों को सुनने वाले हैं। काशी विश्वनाथ धाम ये एक भारत राज्य की आध्यात्मिक राजधानी है। जैसे मैंने कहा था, गाय, गंगा, गौरी शंकर और गिरिराज हिमालय की संस्कृति पूरे भारत वर्ष में इस विद्वत नगरी के माध्यम से हो रही है, लहरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम, भारत विश्व गुरु बनेगा, इन सब मंगल ध्वनि की गूंज इस नॉलेज विश्वनाथ कॉरिडोर से हो और ये वर्ल्ड पार्लियामेंट के माध्यम से ये संदेशा पूर्व विश्व में लहरे, इसका प्रचार प्रसार हो और भारत एक दिन विश्व गुरु बन के हम सबके सामने में आए। उसकी मंगल ध्वनि की गूंज, जैसे मैंने कहा, इस 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी के माध्यम से पूरे विश्व में जा रही है। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन एक ही बोलूंगा कि इतने सब जो मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, बद्रीनाथ मंदिर, इसके जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वो विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराट सर के माध्यम से हुए। लेकिन वो कभी ऐसे नहीं कहते कि ये मैंने किया है, कहते हैं ये तो माऊली का प्रसाद है, ये तो बस हो गया है, ये तो बन गया है, मैं तो माध्यम हूं, निमित्त हूं। बुलंदी उन्हें छू नहीं सकती जो फक्र करते हैं, बुलंदी उन्हें को छूती है जो महादेव का शुक्र करते हैं। इसी में लफ्जों के साथ आपका सबका तहे दिल से यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। और जैसे कि डॉक्टर मिलिंद पांडे सर ने कहा कि ये 9वीं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही पवित्र ऐसी जगह पे उपस्थित है। And now, to give us the glimpses of the World Parliament of Science, Religion and Philosophy, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Know how wonderfully, very uniquely, with a unique style and fashion, expressing the very wisdom how to live and how let others live. हंगामा, फसाद, बुराई धर्मों की वजह से नहीं है, बल्कि धर्मों के नाम पर पॉलिटिक्स करने की वजह से है। America is the oldest democracy, very prosperous democracy, I must say, and mature democracy, and we are the largest democracy in the world. पसायदान या वचनाचा किंवा या काव्याचा जर आपण सार काढला तर मला असं वाटतं जगातील सर्व पवित्र आणि अत्यंत वंदनीय अशा धर्मांच्या मानचिन्हांच्या खाली
एवढे एक जरी पसायदान लिहिलं तर सगळ्या धर्मांचा अर्थ समजेल. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome. 21वीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है. विश्वनाथ कराड and millions of people like that, and remember the great service they have done. They should be remembered forever. That is also equally important for all of us. This is the message of this dome. This is the idea of the dome. This is the tallest, not only in size but also in ideas. And if we are able to really take the message of this dome, Look at this magnificent dome. So these are the very fundamental 1,000, 2,000, 5,000 year before for we as a humanity. It is planned that how to live and how not to live. Here is a very unique example and the model for the world, which talks about all the religions. With all humility and humbleness, and to my mind, this dome and with all this unique presentation of the makers of the world history will certainly prove to the world that ये Mother India के नाम पे बना है, in the name of Mother India to become a Vishwa Guru of tomorrow. Manifestation of divinity that already exists in man. अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि. इस डोम के नीचे कम से कम मुझे कहने का दिल करता है कि वो आंखें जो मेरे देश को नफरत की तरफ देखती हैं, याद रखें जैसे हम घर की माँ को चाहते हैं वैसे ही हम धरती माँ को चाहते हैं. Yes, I can do, I will do. ये प्रकार का अगर विश्वास उस श्रद्धा के साथ पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन तीनों से जो बातें हमें मिलेगी उससे भारत विश्व को दिशा दिखा सकता है. करार साहब, आपने बहुत बड़ा काम किया. No words to express my happiness today that this very next day of Gudi Padwa, the Hindu Navavarsha, we are commencing this 8th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. Thank you. एजुकेशन की दिशा जो है ना, जिसमें देह और बुद्धि का विषय होता है लेकिन आत्मा और मन का विषय होता है, वो एक वारकरी संप्रदाय का है. Thank you. विश्व के सभी धर्म के परिंदे Thank you very much. Let's give a big round of applause to the एक बहुत बड़ी तालियों की गूंज हो बहुत बहुत धन्यवाद. और अब इस कार्यक्रम में आगे जाने से पहले मैं रिनाउंड लिटरेरी और हिंदी सलाहकार समिति नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी से विनती करूंगा कि वे अपने विचार हमसे साझा करें. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः. ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा. आज 9 फरवरी है. 9 अंक भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन में पूर्णांक की स्थिति में हमको मिलता है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. यह पूर्णता क्या है? इस ज्योतिर्लिंग के पावन प्रांगण में जहां वेदो खिलो धर्म मूलम की बात की है, जहां 5 जन्य ऋषिकेशों से स्वागत किया गया है और जहां माता शत्रु पिता बैरी ये न बालू न पाठिता
न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस विश्व शांति के यज्ञ में, ज्ञानाग्नि में हम अपने आप को आहूत करें। उससे पहले मैं बहुत हृदय की अतल गहराइयों के साथ ब्रह्म विद्या के नदीष्ण विद्वान, इस भारत की मेधा प्रज्ञा के स्वनाम धन्य महाराज साहब को प्रणति पुरस्कार पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए अति संक्षेप में सूत्रात्मक रूप से 9वीं विश्व धर्म परिषद की स्थिति, अवस्थिति, काशी में क्यों की गई है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य, उसकी संकल्पना, प्रख्यात शिक्षाविद, शिल्पकार, विश्वधर्मी प्राध्यापक प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब, आत्मा वही जायते पुत्र स्वनाम धन्य उनके सपूत श्रीमान राहुल दादा साहब, स्वनाम धन्य तो हैं ही हैं इंद्रेश जी, मेरे अग्रज भी हैं, ऐसे भारत माता के सपूत अग्रजवर्य पूज्य योगी जी महाराज, मंच पर विराजे सभी अध्येता और आप सभी के हृदय प्रदेश में हरिहर के अंश रूप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में विराजित उस परमात्मा के ठाकुर स्वरूप को मैं प्रणाम करते हुए, धर्म क्या, दर्शन क्या, संस्कृति क्या और अध्यात्म क्या। धर्म माने अंकुश। भारत एक ऐसा देश है, ज्ञानाग्नि का देश है, ज्ञान का देश है, विश्व कृष्णम वंदे जगत गुरु। धर्म माने क्या, धर्म की जितनी विश्लेषण, परिभाषाएं, मान्यताएं इस देश में स्थापित हुई हैं, हम तो इस अल्प आयु में इतना ही समझ पाए हैं। धर्म माने अंकुश। दर्शन क्या, निज स्वरूप का बोध जिस क्षण हो जाए वही आत्मदर्शन है। संस्कृति क्या, हमारी प्रकृति जिस प्रवृत्ति के साथ संलग्न रहती है वही हमें संस्कृति की ओर ले जाती है। सनातन धर्म के चल विश्वविद्यालय श्री रामचरितमानस की अवधारणा के आधार पर इसी काशी से, इसी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में, उनके गर्भगृह में आज से 500 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस को रखा गया, सभी वेदों को रखा गया, पूरे वांग्मय को रखा गया। सो सत्यम शिवम सुंदरम की हस्ताक्षर से बाबा विश्वनाथ ने इस विश्व को संदेश दिया। उसी के आधार पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने चतुस्सूत्री का जो संदेश दिया है विश्व को, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और इन्हीं चतुस्सूत्री को जब पूरे विश्व में बुलंदियों पर देखा गया तो प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब के चिंतन से एक नवनीत निकल के आया। इस विश्वनाथ कॉरिडोर में एक शब्द छूट गया है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने उस एक शब्द की यहाँ स्थापना के लिए, बाबा विश्वनाथ की मोहर लगाने के लिए इस संगोष्ठी का, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजना है, नॉलेज कॉरिडोर, अर्थात यह पूरा ज्ञान की भूमि है। मुक्ति जन्म मह जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से कस न। हम सब बड़े पुण्यात्मा हैं इस अर्थ में कि बाबा विश्वनाथ की अहेतु की कृपा करुणा से, ढूंढेराज गढ़ने से, ढूंढेराज गणेश जी ने सब जगह से बुला बुला करके हम सबको 3 दिन का काशीवास कराया है। उत्तर वाहिनी माता गंगा के तट पर हम बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ की गोदी में बैठे हैं और उनकी अहेतु की कृपा से हमको ऐसा लगता है, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताएं, काल हैं, कर्म हैं, ईश्वर हैं, मिथ्या दोष लगाएं। आज पूरे विश्व में जो कोलाहल से संत्रस्त समूची मानवता है, सब अंदर से अशांत हैं। शांति की खोज में हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, एकांत साधना करते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, जपादि करते हैं, लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम के गूढ़, किम समझो में मंद मत कलमल ग्रसित विमूढ़। हम सब कलमल के ग्रास के काल के गर्त में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राम कथा के तेय अधिकारी, अर्थात इस विश्व के कल्याण की कामना अकेला और अकेला भारत के पास है। समस्याएं तो बहुत हैं, प्रगाढ़ हैं, अगाध हैं। समाधान क्या है? समाधान का सूत्र MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के चिंतन की धारा से जो गंगा अव्याहत गति से प्रवाहित हो रही है, वह समाधान सिर्फ और सिर्फ महाराज साहब की अध्यक्षता में इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से जो नवनीत निकल के आ रहा है, वो 35 तत्वों का हम सबका पूंजीभूत जो पंच तत्व का भूतात्मक देह है,
जिसमें पंचभूत हैं, पंच प्राण हैं, पंचकोश हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 1 आत्मा अर्थात रूह। उसको जाने बिना अंतःकरण में शांति संप्राप्त नहीं हो सकती। इन 33 तत्वों के पूंजीभूत हरिहर के रूप में हम सब बैठे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता ब्रह्म विद्या के महाराज साहब बहुत नदीश अध्येता हैं इस विश्व में। मैं उनके सामने बहुत अल्पज्ञता के साथ निवेदन करना चाहूंगा। बाल गंगाधर तिलक से लेकर महाराज साहब तक ने जो गीता की टीकाएं की हैं, विश्लेषण किया है, 40 मिनट के परिसंवाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में 665 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन कहता है, हे प्रभु मेरी समझ में गीता नहीं आई, लेकिन अंत में जब उसने सरेंडर अपने को किया तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत स्वभाव है, हमारी प्रकृति होनी चाहिए। उससे पहले हमको क्या होना चाहिए? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अकड़ो मत, झुके रहो। अकड़ेंगे अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो भारतीय संस्कृति का संदेश है, विद्या ददाति विनयम विनियात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ये जो G20 का उद्घोष माननीय पंत प्रधानमंत्री जी ने दिया, उनका ये संसदीय क्षेत्र है, उनका ये ड्रीम है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसमें नॉलेज प्रवेश कर गया है। अयम निजः परोवेति गणना लकुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर यह पूरा विश्व टिका हुआ है। संक्षेप में सूत्रात्मक रूप से इस संगोष्ठी की जो संकल्पना है महाराज साहब, तापत्रय विनाशाय। आज समूची मानवता 3 तापों से ग्रसित है। हम पहले स्वयं को जाने, हु एम आई, हम स्वयं से पहले मिल लें, उसके बाद जगत से मिलें, तो हमारे अंतर जगत में जो शांति का पारावार लहरा रहा है, सर्वभूत हिते रता। आप सभी में, हम सभी में वही परमात्मा का स्वरूप है। सर्वम इदम खलुदम ब्रह्म। इस पूरी चराचर 14 भुवनों में वही परमात्मा है। जैसे अंत में सत्य पालन, विश्व शांति की जो अवधारणा है वो सत्य पालन। असद के व्यवहार से सत्य नहीं पा सकते। समय पालन, महाराज साहब से अभी चलते चलते एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझ अकिंचन सेवक को। जीवन में एक एक क्षण का जो पालन करता है, सदुपयोग करता है, कर्मयोगी की तरह। आत्मानुशासन, दृढ़ता। हमको संकल्प में तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। जब हम दृढ़ होंगे किसी संकल्प के साथ तो सटेंगे, उस संकल्प के साथ सटेंगे तो उसका ताप मिलेगा। ताप मिलेगा तो हमारा संताप जितना भी भवसागर है, माँ के गर्भ में 9 मास मलमूत्र की टंकी में हम सब रहते हैं, तो तेन परे भवकूप, इस भवाटवीक से हम मुक्ति पाएंगे। इसीलिए यह काशी मुक्तिदायिनी है, मुक्ति क्षेत्र है। और इसके लिए 3 सूत्र हैं। पूरी समूची गीता, समूचा वेद ज्ञान, समूचा उपनिषद ज्ञान कहता है, वासना का तिरस्कार, वैराग्य का अभ्यास और ऐषणात्रय का त्याग। इस ऐषणात्रय के त्याग के साथ ही हम समूची मानवता को एक संदेश दे सकते हैं। जो शांति मंत्र, शांति पाठ हमारे वांग्मय में है, उस शांति के साथ हम भी अपने शांति के रूप में इस भारत माता के एक संतान के रूप में हम अपने को रखें। इन्हीं शब्दों के साथ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की ओर से कॉन्फ्रेंस में पधारे पूरे विश्व भर के अध्येता आप सभी के श्री चरणों में ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारती, जयतु भारतम। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी। और जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, इस ज्ञान की भूमि में, इस पवित्र भूमि में, मुक्ति की भूमि में आज हम यहां सम्मिलित हुए हैं और 3 दिन हम इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी का अनुभव यहां लेने वाले हैं। डॉक्टर मिलिंद पांडे जी ने भी बात की, मिश्रा जी ने भी बात की कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर कुछ अचंभित करने वाले कार्य करने के लिए अब जाने जाते हैं।
हम सब ज्ञान की बात कर रहे हैं और ज्ञान की माता सरस्वती का उगम जहां से हुआ, वहां पे एक बहुत ही अलौकिक कार्य विश्वनाथ कराड़ सर के हाथों से हुआ है। मुझे पता नहीं आप में से कितनों को उसके बारे में मालूमात है। मैं मेरी टेक्निकल टीम से विनती करूंगा कि उस अद्भुत कार्य के कुछ चित्र वे हमें दिखाएं। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम परम पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के निकट केशव प्रयाग के पवित्र स्थान पर भूमाता के गर्भ से निकलकर एक प्रपात के रूप में उछलती, कूदती और बल खाती सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूर चलकर लुप्त हो जाती हैं। इसी मनोहारी स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने जय नामक इतिहास अर्थात महाभारत तथा अन्य 16 पुराणों का निर्माण किया। महाभारत भारत के समृद्ध और संपन्न ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। इसी में हमें मिला है श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान का स्रोत, जिसे वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम तक पहुंचाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरस्वती नदी के इस पवित्र उद्गम स्थल पर ज्ञान की देवी श्री सरस्वती को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। यही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भी माता सरस्वती को समर्पित बहुत कम मंदिर है। सन 2021 के अगस्त महीने में स्थिति जब सामान्य होने लगी, तब मंदिर निर्माण के लिए MIT का एक दल माणा गांव पहुंचा और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना और संरचना के आधार पर श्री सरस्वती मंदिर को मूर्त स्वरूप देने के कार्य का आरंभ हुआ। परिस्थितियां बहुत कठिन थी। प्रत्यक्ष निर्माण कार्य एक अत्यंत दुर्गम भौगोलिक स्थान पर होने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, फिसलती चट्टानें, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड, असमतल जमीन, ऐसी स्थिति में लगातार काम करते हुए केवल 63 दिनों की अवकाश में इस सुंदर श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर का कार्य पूरा हो गया। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। एक बहुत बहुत तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हो प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर के लिए और उनके विचारों के लिए। मित्रों, और अब इस सत्र में समय हो गया है कि मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर से विनती करूं कि वे अभी सभी उपस्थितियों का स्वागत सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं सर से विनती करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं सर से विनती करूंगा कि वे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा नई दिल्ली के आज के सत्र के अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर करण सिंह जी का स्वागत सत्कार करें। तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हो।
आज हम सभी काफी उत्तेजित हैं कि करण सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। अब मैं सर से विनती करूंगा कि वे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष श्री इंद्रेश कुमार जी का स्वागत सम्मान करें। अब मैं सर से विनती करूंगा कि वे रिनाउंड स्कॉलर, साधक और हिमालयन योगी ऑनरेबल स्वामी योगी अमरनाथ जी का स्वागत सम्मान करें। और आज हमारे बीच बिहार राज्य के भूतपूर्व मंत्री महोदय श्री प्रमोद कुमार जी उपस्थित हैं। मैं सर से विनती करूंगा कि उनका भी स्वागत सम्मान हो। धन्यवाद। और अब जी श्री राहुल कराट सर से मैं विनती करूंगा कि वे डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी का दिखिल स्वागत सम्मान करें। जिनका बहुत बड़ा सहयोग है ये कार्य को कुठे हाँ बाद में प्रियंका रूपा तत्वज्ञ संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में समाचरण पांडुरंग विठल रुक्मिणी और इस काशी विश्वनाथ के चरणों में वंदन करके मैं बोलूँगा। एक अनुभूति का स्थल, विद्या की नगरी, बहुत पुरातन नगरी ऐसे भी कहा जाता है। ऐसे पवित्र समारोह में आशीर्वाद देने के लिए विशेषकर ऑनरेबल डॉक्टर करण सिंह साहब का आना, one of the most unique and known personality in the world, not in India alone, a scholar, thinker, philosopher, and all this wisdom, which is called as the Vedic wisdom, ज्ञान की परंपरा के पुजारी, एक महान शिव भक्त करण सिंह साहब के आने से ये बड़ा आशीर्वाद है, ऐसे मुझे लगा। पुराना इतिहास है, लेकिन when this very unique event is taking place in काशी बनारस, just now I think हमारे योगेंद्र मिश्रा जी और पांडे साहब ने वर्णन बहुत किया। क्या पर्पस क्या है भाई, यहाँ आने का मकसद क्या है। महाराष्ट्र ये ज्ञान की भूमि है, ज्ञानेश्वर तुकाराम जी की भूमि है, उसे ज्ञान पंडरी भी कहा जाता है। वहाँ से निकलकर काशी में आने का कारण क्या है, मैं स्वयं को पूछ लेता हूँ। करण सिंह साहब, इंद्रेश कुमार जी आप भी जानते हैं, मेरा दोस्त बैठा है सामने, पंडित वसंत गाडगिल है।
पता नहीं 40-45 साल से जो पूजन हुआ, जिसका चिंतन हमारे बैनर पे दिया गया है, संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, Schrodinger, Penrose, and so many names can be taken. But certainly these names, they indicate a certain pathway for human race. मानव कल्याण की, मानव के शांति की बात, बड़े लंबे लंबे शब्द है, पता नहीं, लेकिन संकेत आता है जैसे ये चमत्कार नहीं, ये जीवन की अनुभूति है। पता नहीं हमारे दृष्टा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने ये कॉरिडोर बनवाया, उज्जैनी में कॉरिडोर बना, राम मंदिर की बात हो गई अलग दिशा में, इतना सुंदर। ये कॉरिडोर शायद नहीं बनता तो मैं नहीं आता, मैं बोलता हूँ। And I have been given and assigned a duty कि भाई ये है, दुनिया के सामने याद आती है मुझे कि स्वामी विवेकानंद का, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, मैं आपको बताऊंगा करण सिंह साहब की, आई वॉज नॉट टू बिकम एन इंजीनियर, पता ही नहीं था। एक छोटे देहात से 1500 बस्ती का गांव है, वैष्णव फैमिली है पूरी, और सारे इसमें एक परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम की बात। लेकिन बात में हिस्ट्री नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन छोटी बात है कि 10 पेक विवेकानंदा वॉज द स्मॉलेस्ट बुक विच आई रिसीव्ड इन प्लेस ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसी दुकान में जाने के बाद और वो किताब देखी और उसमें लिखा है, आप तो सब जानकार है, बोलना भी मुझे डर लगता है। When the Vivekananda, 10 पेक विवेकानंदा speaks, and he's speaking in the World Parliament, the first World Parliament of Religion, Chicago. Apna hi bhai, the greatest noble son of India, Swami Vivekananda, is addressing that parliament. Nearly 4,000-5,000 delegates world over from. And when he says, my sisters and brothers of America and the world, and he gives an advice, a prophecy जैसा है, to remember. And he says, union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, ये यही एक रास्ता है कि जो दुनिया को शांति का मार्ग दिखाएगा। ये मेरा बयान नहीं, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में बोला है, वो भी अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में। उसके बाद में कहा था उन्होंने 1897, when he says, Hapanto, we were under the clutches of the British, and when he says that time, he makes a prophecy, भविष्यवाणी है। जब स्वामी विवेकानंद अपना ही बड़ा भाई दुनिया को बोलते हैं, to remember that 50 years from today onwards, my mother India will become free from the clutches of the British. मेरी भारत माता, गर्व से नहीं, इसमें गर्व नहीं है, स्वाभिमान है। And when he gives this address, and so it becomes exactly 1947, 1897, add 50, it comes to 1947. क्या भविष्यवाणी है? उसी भविष्यवाणी का दूसरा रूप आज शायद ये हिस्टोरिक इवेंट के नाते हमारे करण सिंह साहब के ब्लेसिंग से, उनके विचार से, विचारधारा से, इंद्रेश कुमार जी है, हमारे अमरनाथ स्वामी है, हमारे भाई है बिहार से, तो इनके और आपके साक्षी से शायद जब मैंने जरूर उल्लेख किया नरेंद्र मोदी साहब का, मुझे बहुत नाज है इस पर, ये क्यों बना, कैसे बना, अभी क्यों बना, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्या, कौन सी दिशा क्या है। हमारे योगेंद्र मिश्रा जी ने बताया आपको कि भाई इसको, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इतना सुंदर बना है, लेकिन उसको ऐड होना चाहिए ज्ञान की भाषा है, ये नॉलेज कॉरिडोर है। हम नहीं किसी को सिखाना नहीं चाहते, प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी एंड मेनी ऑफ द लर्नड स्कॉलर्स नो इट वेरी वेल, बट टू माई माइंड आई डोंट नो, बट 4-5 months बैक अ थॉट केम टू माई माइंड, एंड बस सरस्वती मंदिर बन गया। कैसे बना, 63 दिन में कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, क्या वास्ता है मेरा,
महाराष्ट्र से निकलकर, एक छोटे देहात से निकलकर जब ऐसे लोगों ने आशीर्वाद दिया तो 63 दिनों में सरस्वती मंदिर बन गया। आपने हमारे माननीय गवर्नर महाराष्ट्र के कोश्यारी साहब, उनकी बयान सुनो कभी मौका मिले तो। लेकिन ये ईश्वर की देन है, प्रसाद है, अपना कोई नहीं होता है इसमें। कि मैंने किया द बिगेस्ट डोम इन द होल वर्ल्ड, जिसकी भाषा आपने सुनी, इन द नोन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे मालूम नहीं था, इसको डिजाइनर नहीं, प्लानर नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, कोई मजदूर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, क्रेन यूज नहीं किया, एक बार किया है आखिरी। वो जो देवी बिठाई ऊपर 54 फीट का कलश है, उसको वहां पे सरस्वती की स्थापना करनी थी। तो उस टाइम हमने बड़ौदा से एक क्रेन मंगा के वो उठा के ऊपर रखा था। ये सच्चाई है, अगेन करो नहीं। लेकिन ये सारे काम ईश्वर की इच्छा हो, ईश्वर का संकेत हो, इस बहाने से चलती है। तो आज का यहाँ आना, ये विद्वत नगरी में, कल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया था, मदन मोहन मालवीय साहब के चरणों में माथा रखकर शिक्षा की विषय है, एजुकेशन की विषय है। और दुनिया में शायद फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर यू सॉ द फिल्म, बट रिमेंबर at least to all the vice chancellors, the learned scholars, thinkers and philosophers, सुनील राय बैठे इधर हमारे वाइस चांसलर। एक मेरे मन में आता है कि जब ये कोरोना वायरस की बात आई, आई एम डिवेटिंग द सब्जेक्ट्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। कैन यू इमेजिन, इट वाज 25th of March when I was writing something in my own style to understand the truth, the ultimate reality, consciousness, because these are the words which have been added by the greatest scientists of the whole world. Schrodinger, Penrose have said that, friends, remember, you must start the schools of consciousness and reality. अंतिम सत्य की खोज में चलने की कोशिश करो। एजुकेशन में you should start the schools of consciousness and reality. ये क्या भाषा है भाई? आपने सिंबल देखा होगा, शिव जी का सिंबल है, इट्स अ कॉस्मिक डांस। मैंने लिखा है कि ए सिंबल ऑफ डिवाइन कॉस्मिक डांस। इस परिषद से क्या नाता है इसका? ये क्यों भाषा है ये? तो मैं इतना कहूँगा कि ये सारी भाषा के पीछे एक संदेश आता है कि जब मुझे ये डोम बना तो उसको ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं, बन गया, एक सादे ऑर्डिनरी वर्कर्स है। लेकिन वहाँ पे जब वो लिखा गया तो इट वॉज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी है। अंधश्रद्धा की बात बड़ी होती है धर्म का नाम लेते ही। धर्म ग्रंथ यानी जीवन ग्रंथ है, ऐसे भी मैंने जो बोला है, ये अपना बयान नहीं है। इट्स अ गिवन ड्यूटी टू यू, इट्स अ ड्यूटी असाइन्ड टू यू बाय द ऑलमाइटी। वेयर फ्रॉम वी हैव कम, व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये ऐसी भाषा आप जानते हैं सारे। ये सारे छोटे छोटे संदेश लेके बाद में लगा कि आलंदी ज्ञानेश्वर की भूमि, ज्ञानेश्वर का नाम ये भारत के नाम पे ऐसे बोला जाता है। भा का मतलब है प्रकाश। एक है सूरज प्रकाश जो जीव सृष्टि को जीवदान देता है, जीव देता है, प्राण देता है, आत्मा की उन्नति होती है। लेकिन दूसरा प्रकाश है वो ज्ञान प्रकाश है, और ज्ञान में रथ वो है भारत। ऐसी व्याख्या है मेरे गुरु बारलिंगे साहब ने मुझे बताया। तो ये सारी बातों का चिंतन लेकर आशीर्वाद के लिए शायद ये विद्वत परिषद जहां है काशी बनारस में, ज्ञानी कौन और विद्वान कौन, ऐसी भी भाषा हुई। लेकिन ऐसे लगा कि ये दोनों का मार्ग एक है, विश्व शांति का, मानव कल्याण का। हमारे पूज्य करवे गुरु जी आ रहे, let him sit. He is another man of prophecy. ये मुझे बसा कहना बस हुए, प्लीज शर्मा जी, let him sit. प्लीज।
सर ये 93 उम्र के हमारे गुरु है पूज्य श्री श्री कृष्ण करवे गुरु जी। ये यहाँ जितने लोग, मैं प्रचारक नहीं हूँ उनका, लेकिन जितने लोग अपन बैठे हैं करण सिंह साहब के साथ, इंद्रेश कुमार के साथ, अमरनाथ के साथ, कि अभी एक आधे मिनट में तुम्हारा जन्म किस मिनट, किस महीने में, कौन से साल में हुआ, ये सब मालूम है, उनके डायरी में है। ऐसी एक गिफ्ट है, बट वो बोलते मुझे कुछ आता नहीं। करवे गुरु जी, धन्यवाद करवे गुरु जी, पुनः एकदा टाळेगा। तो ये ज्ञान भूमि से विद्वत जनों की भूमि में आना आशीर्वाद के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर hereafter will be more known as a Kashi-Vishwanath knowledge corridor। ज्ञान की भूमि है, ज्ञान का रथ होना, ये हमारा तत्वज्ञान है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती इज अनदर फिलोसॉफी। वसुदैव कुटुंबकम G20 का सबसे बड़ा मायना यही विश्व गुरु के लक्षण है। ये जो भाषा है ना, ये भाषा दिस इंडिकेट्स द रियल, उसके जो लक्षण बोलते हैं उसको, इसका सुंदर लक्षण, सुंदर दर्शन इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से निकल के दुनिया में जाएगा। और यहाँ से आगे जो स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि माई मदर इंडिया विल इमर्ज एज अ नॉलेज कॉरिडोर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड विल शो द पाथ ऑफ हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरी भारत माता का होगा। और ये कोरोना वायरस से सब टेम्पल्स बंद हो गए, चर्चेस बंद हो गए, सारा बंद हो गया। दरवाजे के पीछे डर के बैठे थे। ऑल द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ऑफ द होल वर्ल्ड वे आर हाइडिंग देमसेल्व्स बिहाइंड द डोर्स फॉर 2 years। 2 साल ये केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, द केओस, कंफ्यूजन, ब्लडशेड, मैसेकर, टेररिज्म दुनिया में जो चल रहा है, उसको रास्ता कौन दिखाएगा भाई? मानवता का पुजारी, त्याग और समर्पण का पूजा करने वाला देश ये भारत। और ऐसे महान करण सिंह साहब हो या हमारे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पे सामने और यहाँ पर, इनको ये करना है भाई, अपना फर्ज समझ के, गर्व से नहीं करना है। तो इसके लिए ये प्रयास है, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। और इस पवित्र भूमि से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर बोलने से नहीं होगा। ज्ञानमयो विज्ञानमयो ये भाषा है, ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। स्पिरिचुअलिटी या किसी धर्म की भाषा हो तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर लाइफ गाइडिंग स्क्रिप्चर्स। दे आर, ये कब भाई कैसे हुआ? तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील और संत ज्ञानेश्वर का बयान एक ही है भाई। शायद बुद्ध का पंचशील जो है वही एक रास्ता है, ज्ञान का रास्ता, ज्ञान की खोज में बाहर निकले हों। ये सारी बातों का जिक्र करके, शायद आप बड़े लोग हैं, जानकार है, समाज को, दुनिया को बोलने का वक्त आ गया है। और आप जैसे लोग बोलेंगे, करण सिंह हो, इंद्रेश कुमार जी हो, बाकी सारे लोग बोलेंगे, तो इसमें स्वार्थ की भाषा नहीं है, गर्व की भाषा तो बिल्कुल नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम चिरेण अधिगच्छति। देह और बुद्धि एक तरफ और आत्मा और मन। शायद मेरी भी गलती है कि मैं एजुकेशन में काम करते रहा इतने साल से, 40-45 साल, बट ऑल द वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, सोचो जरा कि भाई गलती हुई, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, बोस्टन, स्टैनफोर्ड, यू टेक द नेम और वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी itself, the Chinese, the Japanese, all the universities world over, we have been more keen to understand this mechanism. It's a mechanism. जीव सृष्टि का ये मैकेनिज्म है भाई साहब, जिसमें देह और बुद्धि का चिंतन होता है, उसका संशोधन होता है, and the highest possible discoveries have taken place world over, but आत्मा और मन की बात थोड़ी भूल गए। वो ये अध्यात्म का शास्त्र बोला जाता है, शास्त्र है वो, अंधश्रद्धा नहीं। तो ये बातों का जिक्र अभी आने वाला है, और उसके लिए MIT स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी, आई रिपीट, that will show the pathway possibly, and with this small effort of our World Peace University, ये जोड़ने का प्रयास है। ये जोड़ने का इतना सुंदर प्रयास है कि मेरे ख्याल से आप
काशी विद्वत्ता नगरी की। कोई इतिहास में नहीं जाना चाहता क्यों हुआ, ब्रिटिश क्या हुआ, इस्लाम का क्या हुआ, कैसे तकलीफ हुई, लेकिन ऑन दिस बैकग्राउंड दिस ये जो आवाज़ निकलेगी, ये डिवाइन नॉलेज का प्रकाश आएगा सामने इस कॉरिडोर से। तो इसके लिए मेरा ये प्रयास है, आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। एक बात बोलना मेरे पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप क्या कर रहे भाई, यहाँ क्यों आए तुम, नासिक क्यों गए नहीं, हरिद्वार क्यों नहीं गए। मैं बोला भाई देखो कुछ क्या नाता है पता नहीं विश्वनाथ का, लेकिन ये जब दिखाया तो इसमें जो सब्जेक्ट्स है डिस्कशन करने के लिए, वो बोले कितने लोग आ रहे हैं, भाई वेरी फ्यू पीपल, बट इसमें जो सब्जेक्ट्स है टू माई माइंड ये पीएचडी बनने के काबिल है सारे, लेकिन ये चर्चा करने से दुनिया नहीं मानती। दुनिया तो बोलती अरे क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो, जमीन पे आओ और बोलो और करने का प्रयास करो। इतना ही बोल के कभी देखो भैया जरा गौर से। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you very much for your words of wisdom. Let's give revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir a big round of applause once again for his words of wisdom and his commitment to the cause of world peace. दोस्तों, विश्व शांति की बात हो रही है और हम विश्व में हुए एक अनहोनी घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। We cannot ignore a very, very bad incident that has happened in one corner of the world in this 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. Because we are talking about the ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो इस वसुधा पे, इस पृथ्वी पे एक बहुत बुरी घटना कुछ दिन पहले हुई है। हम सभी जानते हैं कि सीरिया और तुर्की के इलाके में अर्थक्वेक की वजह से कई हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आज इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी और वसुधैव कुटुंबकम की जिस संकल्पना पे हम काम कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सभी से विनती करूंगा कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम मौन धारण करके उन सभी जीवों के लिए परमपिता से प्रार्थना करेंगे। Thank you very much. और अब यह मेरा भारत ही है जहां लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस काशी कॉरिडोर नॉलेज के प्रांगण में विश्व में आई आपदा की मृत देहात्माओं के लिए उनकी शांति की, सद्गति की प्रार्थना कही है, इसलिए ये नॉलेज कॉरिडोर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी। And my friends, it's indeed my honor and privilege now to invite the first special guest of honor of this session, एक ऐसी व्यक्ति जो एजुकेशन से, प्रोफेशन से एक इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट थी, बट अचानक 9 वर्ष पहले एक दिन वे हिमालय की गोद में शांति की खोज में चले गए। And after he returned from Himalayas, he devoted his entire life to the concept of zero meditation. तंत्र मंत्र हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाते हैं,
और एक ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है. A person who has been working on this concept for last many years is present here us. Please put your hands together and welcome with a big round of applause renowned scholar, sadhak and Himalayan yogi, Honorable Swami Yogi Amarnath ji. मंच पर सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके अंदर के प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं. आज इस धर्म संसद का जो शिव धनुष्य शिव के साक्षी से विश्वधर्मी विश्वनाथ जी ने उठाया है और MIT यूनिवर्सिटी ने MIT परिवार ने उठाया है, इसलिए अंतःकरण से मैं उनको सर्वप्रथम प्रणाम करके अभिनंदन करता हूं. पुणे, आळंदी और काशी दोनों अंदर से जुड़े हुए हैं. एक ज्ञान नगरी है, एक विद्वत नगरी है. ज्ञान है वहां विद्वत्ता है, जहां विद्वत्ता है वहां ज्ञान है. इस नगरी से मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा जो थोड़ी गंभीर है और मेरी आप सभी से विनंती है कि थोड़ी गंभीरता से वो बात को आप सुन लें. 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी की थी, जिसका डॉक्टर विश्वनाथ जी कई बार उल्लेख करते हैं, भारत 20वीं शताब्दी में पुनः विश्व गुरु बनेगा जो पूरे संसार का पथ प्रदर्शन करने में समर्थ होगा. मैं ये कहने के लिए आज बहुत खुश हूं. ये भविष्यवाणी आज प्रत्यक्ष सिद्ध हो रही है. ये कोई सपना नहीं है, कोई स्वप्न रंजन नहीं है. ये जो उन्होंने 125 साल पहले कहा था, वो आज 2022-23 में प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है और इसकी हर भारत के नागरिक को इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए. और मुझे कहने में बहुत गर्व है कि समूचे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है. पुंज पदार्थ विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स की एक शाखा, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसंधान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार एलन आस्पेक्ट फ्रांस, जॉन क्लाउजर अमेरिका और एंटोन झाइलिंगर ऑस्ट्रिया को मिला. ये तीनों वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दुनिया को दिया. इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया. उनका निष्कर्ष है, द यूनिवर्स इज लोकली अनरियल. और हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने यही शब्दों में कहा है, ये शाश्वत सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या. आप सोचिए, शब्द भी समान है, मिथ्या, अनरियल. जो सपना, जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की है, वो सत्य में आना प्रारंभ हो चुका है. वो अभी सपना नहीं है. ये सबके लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है. भारत के प्राचीन सार्वभौमिक जो अध्यात्म शास्त्र है, जिसके शब्द में आदि अधिक आत्मा, आत्मा है. अभी अभी विश्वनाथ जी ने जो कहा, आत्मा पे अध्ययन होना काल की अत्यावश्यक बात है. देह बुद्धि के परे उठेंगे तभी हम आत्मा के अध्ययन तक पहुंच सकेंगे. और जो हमारे प्राचीन सिद्धांतों पे अज्ञात समझ के एक पर्दा डाला गया था, उसे गुह्य समझा गया था. एक आश्चर्य की बात है,
वो पर्दा आज आधुनिक विज्ञान उठा रहा है। विज्ञान पदार्थ मैटर से पर्दा उठाता है। आज जो डॉक्ट्रिन से हमारे अध्यात्म शास्त्र से, उससे पर्दा कौन उठा रहा है? आधुनिक विज्ञान उठा रहा है। इससे बड़ा चमत्कार और आपको क्या चाहिए? 2022 से यह प्रारंभ हुआ है। लेकिन एक बहुत दुख की बात मैं कहना चाहूंगा, इस सत्य घटना को, इस चमत्कार को हमारा मीडिया, दोनों इलेक्ट्रॉनिक हो के प्रिंट मीडिया, आज भी उस नजर से नहीं देख रहा है जिस नजरिए से, जिस अप्रोच से देखना चाहिए। हालांकि जब भी कोई ऐसा रिसर्च होता है हमारे सिद्धांतों पे, तब भी उनका ध्यान नहीं जाता। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं सारे दुनिया के मीडिया को विनती करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति एक संवेदनशील इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। लोगों को पता चले अध्यात्म और विज्ञान एक ही पंछी के दो पंख है। आप एक पंख काटेंगे, पंछी नहीं उड़ सकेगा, चाहे दाया पंख काटो, बाया पंख काटो। जो विवेकानंद जी ने और एक बात बताई थी, जो अभी अभी विश्वनाथ जी ने बताई है, साइंस और रिलीजन का यूनियन ही दुनिया में शांति ला सकता है। उसका प्रारंभ हो चुका है। आज जो मैं देख रहा हूं, कालाय तस्मै नमा, ये काल का एक चमत्कार है। जो बातें हम हजारों साल से कह रहे हैं, वो क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। वेद और विज्ञान करीब आ गए। साइंस और समाधि का ये अद्भुत संगम हो रहा है। और मैं आगे आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस 90वें विश्व संसद के माध्यम से विद्वत नगरी काशी से आने वाले 10 साल में क्वांटम फिजिक्स 4 महान भारतीय प्राचीन सिद्धांतों के ऊपर अनुसंधान करके दुनिया के सामने हमारा प्राचीन शास्त्र, प्राचीन सिद्धांतों को उजागर करेगा। और ये मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई कल्पना रंजन नहीं है। ये सत्य में उतरना प्रारंभ हो चुका है। ये सुबह हो चुकी है, अब दिन आकर ही रहेगा। सबसे पहला तत्व जिसके ऊपर हमारे अध्यात्म शास्त्र की बुनियाद खड़ी है, द फंडामेंटल ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर अनुसंधान होगा। क्वांटम फिजिक्स विल एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और स्पिरिट। आत्मा का अस्तित्व क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स मान्य करेगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो विज्ञान पहले ही कह चुका है। दूसरी बात है पंचकोश सिद्धांत, जो तैत्तिरीय ऋषि ने तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में स्पष्ट उल्लेख किया है, उसके ऊपर क्वांटम फिजिक्स प्रकाश डालेगा। सून वी विल सी डिजिटल इमेजिंग ऑफ ऑल आवर 5 बॉडीज। अंदाजन 25 साल पहले ऑरा के ऊपर संशोधन हो चुका है। आज हम गैजेट्स के जरिए ह्यूमन ऑरा देख सकते हैं। वी कैन सी ह्यूमन ऑरा, ह्यूमन बायोफील्ड ऑन द गैजेट्स, which comes from subtle body. Now quantum physics will definitely reach up to subtle bodies and we will see imaging of all the 5 bodies. ये वक्त दूर नहीं है, आने वाले 10 साल में इसके ऊपर बहुत अनुसंधान होके ये सारा दुनिया के सामने अपने आप आएगा। ये काम अब विज्ञान करेगा। उसके बाद तीसरा तत्व, मृत्यु पश्चात जीवन, लाइफ आफ्टर लाइफ। क्वांटम फिजिक्स विल थ्रो लॉट ऑफ फोकस ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2002 में एक लेडी पेशेंट जिनका नाम था अनीता मुरझानी, she was suffering from cancer in Hong Kong in 2002. In 2006, 4 साल पहले ये डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन 2006 में हांगकांग में डॉक्टर्स ने अनाउंस किया उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद जो उनका अनुभव हुआ उस पर बहुत रिसर्च अनुसंधान हो चुका है, जिसे कहते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन सर ये विश्व का पहला एक अनुभव हो चुका है। NDA के तो हजारों मामले, देयर आर मेनी केसेस, बट उनके कैंसर के जो लक्षण थे वो नष्ट हो गए। आज वो सारे दुनिया में लेक्चर्स दे रही है और उनका बुक विश्व में बेस्ट सेलर है, विच इज नोन एज डाइंग टू बी मी। और चौथा तत्व है रीबर्थ एंड इनकारनेशन थियरी, इस पर भी बहुत रिसर्च होगा। मैं विश्व के सारे साइंटिस्ट को अपील करता हूं, हमारे प्राचीन सिद्धांतों पे ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान करें और विश्व के सामने उजागर करें। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी योगी अमरनाथ जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्वामी योगी अमरनाथ जी ने कही कि कई सदियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त है, जो हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान है, अब साइंस उसी ज्ञान पे आधारित नई नई खोज किए जा रहा है और अगले आने वाले समय में ये बात फिर से एक बार उजागर होके समस्त विश्व के सामने आएगी। मित्रों, शास्त्र की बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और हमारे साथ आज इसी तंत्रज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए हैं फॉर्मर चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, एमिनेंट कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ परम सुपर कंप्यूटर, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT न्यू दिल्ली, डॉक्टर विजय भटकर सर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। Bhatkar sir, can you hear us? Yes. So we all are keen to listen to your views, sir. Over to you, sir. Thank you. I'm extremely pleased to participate. It's not a conference alone, and Professor Vishwanath Karan has named it appropriately. It's an opinion of the humanity. So it will be appropriate to call it World Parliament. And it has been called appropriately World Parliament of 3 dimensions of human inquiry: science, religion. We are inquiring from the scientific perspective, from the religious perspective, and also from the perspective of larger inquiry, philosophy, the inquiry of the truth itself. So this is a very, very, very important inquiry, human inquiry, in the matter of the most fundamental question which arise as we appear on this planet, this one. So this is a very important conference, and Professor Vishwanath Karan, in the honorable presence of Dr. Karan Singh ji, Dr. Amarnath Yogi ji, and many distinguished people here are present where we are asking this question. So what is the nature of reality? And for example, every inquiry or every conference, I think someday or other we must dwell on this issue, this one. And we are raising this issue today in the corridor of
Kashi-Vishwanath, where that truth is represented by Kashi-Vishwanath himself, this one. So this is a very important conference in that context. Today, we have raised very important issue that as we go on to inquire the nature of truth, and as was told to us, this question has been raised by some great minds, some great Nobel laureates. This year's Nobel Prize has gone to them, and there this question has been raised. This question, I think, rightly brought to our notice by Yogi Amarnath ji, has been brought on the bank of Ganga, I think, this inquiry. So what is the nature of this truth? From the scientific perspective, by some of the greatest minds of today, this will nothing. From the religious perspective, because religion throws an entirely different aspect of reality. And third is, we are also bringing this from the scientific perspective. So science, religion and philosophy, which is larger sense, inquiry into the truth. So in that sense, this is a very, very important conference. And this year, this is taking place 9th time. Several minds have converged together in Anandi, in different places, particularly in the corridors of Kashi-Vishwanath. We are raising this question, and we are inquiring into this. I'm extremely happy about it, this one. And most importantly, Yogi Amarnath ji brought to our notice that this is the very issue which has been raised also by the Nobel Committee, and and the question has been created that this is what Vedas for years together, from the very starting of the Vedic knowledge system, has raised this question: what is the nature of reality? And I'm very happy that the Nobel Committee decided to take notice of this, and this year's Nobel Prize has been gone. Why Nobel Prize is important? Because this has attracted the attention of the entire world. And this is the very question which the Vedas have raised. And we are now coming to that same inquiry on the bank of Ganga, where I think the Vedas have been enunciated, this one. So I'm very happy about it. This conference is taking place here, and some of the great minds have come together on the bank of river, of this Ganga river, through the blessings of Kashi-Vishwanath Baba, this one, and we are inquiring into this truth. So I'm very, very happy about it. And we are all very happy about this, because we have come to that very fundamental question from which we started. So I would say that this is 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy, three most important dimensions of human inquiry. This question has been raised in this work, and Professor Vishwanath Karan was very firm, and right from the very beginning, I think this issue has brought, he had taken as a fundamental issue for inquiry into this World Parliament, not calling it just a conference. There was this inquiry of the entire humanity is trying to get into this. So I'm very happy about it, and maybe I think on the bank of Ganga, we'll once again, we are inquiring it, we'll arrive more, I think, a wise humanity after this conference and inquiring into this truth. Thank you very much, and sir, I'm very happy about this, and surely the entire humanity will be wiser after this inquiry. Thank you. Ji. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, many important topics are being discussed in this inaugural session of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. And now, I'm going to request a person who's probably a born leader, visionary guide, who has been leading a very, very unique organization in our country. Shri Indesh Kumarji is the Margadarshak of the Muslim Rashtriya Manch, which is a Muslim organization in India supported by Rashtriya Swayamsevak Sangh.
and he is the National Executive Member of RSS. My friends, it is always an honor and privilege to listen to the views of Shri Indresh Kumarji. Let us put our hands together and welcome with a big round of applause the President of Muslim Rashtriya Manch, New Delhi, Shri Indresh Kumarji. आज के इस पवित्र सभा में बाबा विश्वनाथ की गोद में मां गंगा के किनारे पर मंच की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर करण सिंह जी, शेष सभी और सामने बैठे हुए सभा की सौंदर्य को बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, एक विद्यालय में एक बच्चों को प्रश्न दिया गया था, विश्व का जन्नत देश, मेरे शब्द से समझ गए होंगे कि विद्यालय कौन सा होगा, उसका नाम बताइए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रिटन भारत। It is the only truth, it will remain always a truth. विश्व में जितने भी मत पंथ हैं, लगभग क्रिश्चियनिटी 229 सब रिलीजन्स हैं, इस्लाम 72 सब रिलीजन्स हैं, शैव वैष्णव शाक्त बौद्ध जैन सिख प्रकृति उपासक, चाहे वनस्पति को पूजते हो, चाहे जीव जंतुओं को पूजते हो, चाहे नक्षत्रों ग्रहों तत्वों को पूजते हो, कोई गुरु पूजते होंगे, कोई ग्रंथ पूजते होंगे, लगभग 126 से अधिक इसके भी सब रिलीजन्स हैं, जिसमें शैव वैष्णव शाक्त सब आते हैं। हान होंगे, वान होंगे, पारसी होंगे, यहूदी होंगे, इनके भी छोटे बड़े सब रिलीजन्स हैं। अगर विश्व में ये प्रश्न आ जाए, नेम द नेशन वेयर ऑल लाइज, नेम द सिविलाइजेशन वेयर ऑल आर रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, भाई और बहनों, यह एक सत्य था, है और सदा रहेगा। वो सभ्यता भारत है और वह समाज भी भारत है, वो धरती भी भारत है। शायद मुस्लिम देश भी कोई नहीं होगा जिसमें सब मुस्लिम उपपंथ होंगे, ईसाई देश भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें सब ईसाई उपपंथ रहते होंगे। इसलिए इस भारत को समझते रहना, इसकी जो एक्सरसाइज है वही मेरे और आपकी निर्माण की भूमिका भी है। श्रद्धेय विश्वनाथ जी कराड़ ने जो भी जिम्मेवारी उठाई, हम ये कह सकते हैं कि वो उसको बखूबी निभा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई है। यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह जी भी हैं। मैं जम्मू कश्मीर 17 साल रहा हूँ, उस समय मेरे साथ और इनके वार्ता के कुछ दौर भी हैं। वो दौर ना इन्होंने लिखे होंगे ना मैंने लिखे होंगे, परंतु अद्भुत दौर जरूर है। राजनीति से लेकर अध्यात्म तक, अध्यात्म से लेकर समाज तक, सब विषयों की चर्चा उस समय करने का अवसर मिला था। मैं आज जो विषय है उसके संदर्भ में वर्तमान क्या कहना चाहता है, इस पर कुछ बातें कहूँगा। 1966 मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश किया था। रैगिंग में मेरे सीनियर्स ने मुझे प्रश्न दिया था, जाओ और 5 गज दूध खरीद कर लाओ।
मुझे लगा कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे सुना नहीं, तो एकदम चिल्लाकर बोले क्या कम सुनता है? तो मुझे सब सुन गया। तो मैंने 3 प्रश्न किए उनसे, बर्तन यूटेंशियल, उन्होंने कहा नो नीड। मैंने कहा दूध, नो नीड। मैंने कहा दूध बेचने वाला, उनका नो नीड। बर्तन भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए, दूध बेचने वाला भी नहीं चाहिए, और 5 गज दूध। इसलिए जिसको ज्ञान और विज्ञान कहते हैं उसकी सूक्ष्मता यहाँ उत्तर देती है। ईश्वर ने कहा है दुनिया में जितने प्रश्न उठे हैं और उठेंगे मैंने सबके समाधान भेजे हुए हैं। प्रयत्न करोगे तो मिल जाओगे, और असहाय बनोगे तो रोते रहोगे, असफल हो जाओगे। तो हमने उस समय 5 गज दूध खरीदा था, फिर कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आया उस इनोवेशन में यह सनातन को समर्पित है, सत्य को समर्पित है। हमने उनको कहा ये लीजिए 5 गज दूध, तो उन्होंने पूछा ये है या नहीं है, बाद में तय करेंगे, पर खरीदा कैसे ये बताओ। तो हमने जो कहानी घड़ी वो बता देता हूँ। हमने कहा ये हमारा बर्तन है, आप अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध डालिए, हमारे बर्तन को छुइए, 1 गज ऊपर ले जाकर पलट दिए, कॉल इट 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी 5 यार्ड। हमारी जान बच गई और हम आकर सो गए। यहां से एक सूत्र जन्म लेता है, यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, फॉर द चैलेंजेस, फॉर द डिफिकल्ट, तो आपकी जीवन की सफल यात्रा बनती चली जाएगी। मैं 30-31 जनवरी को सेंट्रल एशिया के 11 मुस्लिम देशों की कॉन्फ्रेंस में JNU में था, उद्घाटन और समापन पर, उसके मिशन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में भी। स्थूल रूप से तो ये है कि हम सबके अपने माता पिता हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो गीता ने कहा, और लाखों वर्ष पहले भी कहा गया, वसुदैव कुटुंबकम, हम सबका पिता एक है सूक्ष्म रूप में, और माँ भी एक है। तो पिता का यूनिवर्सल नाम है ऊपर वाला। भाषाई शब्दों में उसके अनेक नाम हैं, पर सूक्ष्म जगत में उसको ऊपर वाला सब जानते और मानते हैं। और माँ हम सबकी एक ही है, जिसको मदर अर्थ कहते हैं। प्रकृति और मनुष्य ना अग्नि में रह सकता है, ना आकाश में रह सकता है, ना हवा में रह सकता है, ना पानी में रह सकता है, केवल पृथ्वी तत्व पर ही रह सकता है। तो वी हैव ए कॉमन फादर, ऊपर वाला, जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई तारक कहता है, कोई परवरदिगार कहता है। वी हैव ए कॉमन वन मदर, दैट इज मदर अर्थ। अगर ये कंसेप्ट ट्रैवल करता जाए तेज गति से, तो फिर वसुदेव कुटुंबकम समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग समझाने लगेंगे। और ये रेजोल्यूशन उन सब मुस्लिम देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि मंडल में पारित भी हुआ, जिसमें 6 के तो राजदूत थे, ऑल द 11 के सेक्रेटरीज वहाँ उपस्थित थे, और डिप्लोमेट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स भी थे। एक बात और कहूँगा, इन भारत और इन द वर्ल्ड ऑल आर बिलीवर्स। बिलीव डिफर्स। कोई हरम को मानता है, कोई मस्जिद को मानता है, कोई मजार को मानता है, कोई चर्च को मानता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई कब्र को मानता है, कोई ग्रंथ को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई प्रकृति को मानता है, पर nobody is non-believer. When all are believer, whom anybody can call, you are a kafir. काफिर का अर्थ होता है जो नॉन बिलीवर है। जब उसका सत्य ये है, तो फिर दुनिया में कई विवादों का जन्म इस शब्द के कारण, इस परिभाषा के कारण और इस संकट के कारण भी आता है। तो मेरा ये कहना है
यह सपना साकार हो, विश्व शांति विकास सह अस्तित्व सद्भाव के मार्ग से आगे बढ़े। When all are believer, nobody is kafir. क्या हम ये रेजोल्यूट कर सकते हैं? Don't call anybody kafir because all are believers. ये रेजोल्यूशन भी वहाँ पारित हो गया था कि अगर कोई किसी को काफिर कहता है तो वो काफिर है, वो शैतान है, ना कि वो इंसान है। इंसान होते हुए भी उसमें शैतानी तत्व है। आज एक और विषय है जिसको समझना बहुत जरूरी है और समझना भी चाहिए, और वो ये है कि हम सब किस ढंग से सोचेंगे। आदमी है, उसको सम्मान भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, शिक्षा संस्कार भी चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। परंतु कुछ लोग हाथ में बम रखते हैं, गोला रखते हैं, गोली रखते हैं, पत्थर रखते हैं और जुबान पर नफरत, गुस्सा और हिंसा रखते हैं। कुछ लोग इसको आतंकवाद कहते हैं, कुछ लोग इसको नक्सलवाद कहते हैं, कुछ इसको दहशतवाद कहते हैं, कुछ इसको टेररिज्म कहते हैं। तो क्या विश्व और उसका मानव हाथ में बम, गोला, गोली, पत्थर और जुबान पर नफरत, गुस्सा और हिंसा अगर छोड़ दे तो जो सपना इस कॉन्फ्रेंस का है वो साकार हो सकता है। लेट अस मेक द ह्यूमन रेस टेररिज्म फ्री। यह भी एक बड़ी जरूरत है। वी आर ए मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कास्ट, मल्टी कलर सोसाइटी। कन्वर्शन नहीं, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स इज द सॉल्यूशन। इसलिए हर रिलीजन में पार्टिसिपेट करना और हर रिलीजन को अच्छा मानना। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने अपने रिलीजन की अच्छाई नहीं बताइए, दूसरे के रिलीजन की अच्छाई बताइए, मानवता में भाईचारा आ जाएगा, सद्भाव आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस विश्वास के साथ माँ गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ की गोद में, जहाँ से सारी सृष्टि का स्वाभाविक रूप से संचालन होता है, जिसका दर्शन करना बहुत कठिन है, तप करेंगे तो शायद कुछ अनुभूति आ सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है 3 दिन की कॉन्फ्रेंस एक सक्सेसफुल स्टोरी फॉर भारत एंड फॉर द वर्ल्ड इट विल बी। कोरोना वायरस चीन ने मानव जाति को मारने के लिए किया, भारत ने आयुर्वेद से, अन्य माध्यमों से और वैक्सीन से मानव जाति का रक्षण किया। इट इज़ द ट्रुथ ऑफ टुडे। यही ट्रुथ दुनिया में प्रभावी बने। इन्हीं शब्दों के साथ कराड़ साहब को बहुत बहुत बधाई है। आप सब यहाँ आए हैं और हम सब मिलकर विचार कर रहे हैं, इसलिए आप सबका भी अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम सभी बहुत आभारी हैं इंद्रेश कुमार जी की आपके विचार हमें आज यहाँ सुनने का मौका मिला। मित्रों, इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जब मैं विनती करने वाला हूं पद्म विभूषण डॉक्टर करण सिंह जी को कि वे अपने विचार यहाँ रखें, बट उसके पहले मैं मेरी टीम से विनती करना चाहूंगा कि उनके कार्य पे, व्यक्तित्व पे बनाई हुई एक छोटी सी फिल्म वे हमें दिखाएं। He is a true representative of a royal charm and democratic legacy at the same time. He is a proud recipient of Padma Bhushan, the third highest civil awards of the nation. Shri Karan Singh is a well-known politician and philosopher. He is the son of the last ruling Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir, Shri Hari Singh. He was a Prince Regent of Jammu and Kashmir until 1952. From 1952 to 1965, he was the Sadr-e-Riyasat President of the state of Jammu and Kashmir in the Republic of India.
Shri Karan Singh was a member of India's upper house of parliament, the Rajya Sabha, representing the National Capital Territory of Delhi. He is a senior member of the Indian National Congress Party who served successfully as President and Governor of the former state of Jammu and Kashmir. He was a life trustee and President of India International Centre. He was elected Chancellor of Banaras Hindu University for 3 terms until 2018 when he was succeeded by Shri Giridhar Malaviya. He has been a prospective presidential candidate over the years. We warmly welcome Shri Karan Singh. Thank you very much for that film, and sir, we were fortunate enough to have you for the inauguration of the World Peace Dome as well. If I may request my team again to share with us the thoughts he shared during that important occasion. May I request my technical team if they can take us through. Another wonder of the world, situated in Pune, Maharashtra, in India, that is Bharat. What a joy it is to be in this magnificent structure. I must congratulate Vishwanath ji. He has created a Taj Mahal of education. This is a Taj Mahal of education, the magnificent dome, all the symbolism that has gone into the 4 Jnana Stambhas and inside. It's quite remarkable. Thank you very much. Let's give him once again a big round of applause, my friends, for his involvement and contribution throughout in all the ventures of Revered Dr. Vishwanath Karat sir. I now request him to address the gathering. Gandhataranga Ramaniya Jatakalabam Gauri Nirantar Vibhushita Vamabhagam Narayana Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapatim Bhaja Vishwanath. Janami Yogam Japam Neva Pujam Natoham Sada Sarvada Shambhutubhyam Jara Janma Dukho Gatatapyamanam Prabhopahiya Pranamami Shambhu. उपस्थित महानुभाव मंच पर और इस सभागार में इस ऐतिहासिक स्थान पे एकत्रित, मैं सर्वप्रथम तो विश्वनाथ जी को बधाई देता हूं कि ये हमें विश्वनाथ जी के चरणों में ले आए। अद्भुत व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल ये आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि अंग्रेजी में बोलना है, तो मैंने अपना भाषण अंग्रेजी में लिखा है। यदि किसी को कोई कष्ट हो उसमें मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो हिंदी में बोलना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया विशेषकर कि क्योंकि विदेश के लोग आ रहे हैं इसलिए अंग्रेजी में मैं भाषण अपना लिखूँ, तो मैं भाषण बोलने वाला हूँ। यदि आप लोगों को कोई इसमें कष्ट हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये छप भी जाएगा, इसका अनुवाद भी हो जाएगा, आप लोग सब इसको आराम से देख सकते हैं। Dr. Vishwanath Karat, Chairman of the MIT World Peace University, the most remarkable institution. Rahul Karat, Executive President, other office bearers of the society, distinguished speakers on the dais, many of whom I have known for many years, assembled members of the audience drawn from many nations and cultures, representatives of the press, students and friends. It is a great privilege to be here in this holy city of Varanasi, with which I was very closely associated for 15 years as Chancellor of the great Banaras Hindu University, founded by Pandit Madan Mohan Malviya, one of our most reputed freedom fighters, intellectuals, and spiritual leaders. And we are meeting in the Vishwanath temple after it has been, in a way, reorganized and transformed by the Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, who is to be congratulated for what he's been doing to further our religious places.
In our mythology, the sacred river Ganga issues from the locks of Lord Shiva. And now that all the obstructions between them have been removed, there is a direct access to the temple from Ganga Ghat. I pray to Lord Shiva that this parliament of science, religion, spirituality and philosophy will help in spreading the message of peace and harmony in a troubled world. The area we are addressing is one on which hundreds if not thousands of books have been written. But I am grateful to have the opportunity to address this important parliament which has brought together scholars and thinkers from around the world. As has been said, India is par excellence the land of religion. 4 of the world's great religions were born here: Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, while 5 have come to us from West Asia and have flourished here for many centuries: Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Islam and the Baha'i faith, while the 3 East Asian religions, Confucianism, Shintoism and Taoism, have grown and flourished in China and Japan. I am aware that religion is not the same as philosophy, but for us in Asia, there has always been a close linkage between the two. We do not look upon philosophy, philosophia in the Greek terminology, love of wisdom, as merely an intellectual exercise, but rather as a quest for wisdom and enlightenment. It is in this context that I venture to place before this distinguished audience a set of 5 sutras, cryptic statements compressing a wealth of meaning based essentially on the Vedantic philosophy, which between them give us a roadmap for addressing the multiple problems that humanity faces today. In my view, a philosophy is really valid only if it helps us here and now to cope with the multiple challenges of life. Otherwise, it becomes merely an academic and archival exercise for students and research scholars. Philosophy should be a vibrant and dynamic exercise that helps us to maximize our inner and outer capacities during our life on earth. The first sutra I have chosen is from the Ishavasya Upanishad. Ishavasya sarvam yatkin jagatyam jagat. This whole cosmos, not merely the tiny speck of dust that we call planet Earth, but the billions and billions of galaxies in the unending universe around us, are all illuminated by, inhabited by the same divine power. Whether it is the stately waltz of the galaxies or the frenetic rock and roll of subatomic particles, so powerfully symbolized in Shiva Nataraja, Lord of the Cosmic Dance, all owe their existence to the same divine force, known in the Upanishads as the Brahman. In a way, this represents a philosophical correlate for the unified field theory that scientists are looking for to explain all the multiple phenomena in the cosmos. This gives us a firm foundation to probe deeper into the power that subsumes all that exists, that has existed, and that will exist in the future. Flowing from this is a second sutra from the Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam Hriddeshe Tishtati. The divine power resides in the heart of all beings. This is tremendously important, because if the divinity was not seated in our hearts, there would be no way in which we could approach it or experience it. While all creatures have potential divinity, it is only with the emergence of the human race that for the first time there is a species on earth which is self-conscious and which can therefore embark on the spiritual quest. Each human being encapsulates a spark of the divine, known as the Atman, and fanning that spark into the blazing fire of spiritual realization is the true purpose of human life. Joining the Atman and the Brahman, in other words, raising our consciousness to a radically elevated trans-rational level of awareness, is the crux of the spiritual quest. The philosophy and methodology of this joining is what is known as yoga. Yoga comes from the same root as the English word yoke, meaning to join.
In our tradition, there are numerous methodologies to bring about this union, but we can recognize four main pathways to join the Atman within and the Brahman without. The first is what is known as the Jnana Yoga, the way of wisdom. This involves clarifying and refining the mind so as to be able to discriminate between what is real and what is illusory. Sadasat Viveka. It could perhaps be compared to the way of Plato, who, as you will recall, held that all we see are shadows thrown on the wall of the cave in which we are seated. We see neither the objects themselves, far less the light that actually illumines them. The Jnana Yoga involves the study of scriptures, meditation, and introspection, so that we develop the capacity to perceive the unchanging reality that lies behind all manifestation. The iconic Adi Shankaracharya and Shri Ramana Maharishi are outstanding representatives of the Jnana Yoga. The second main path is the Bhakti Yoga, the way of devotion. Please note these are separate paths. The first path is the way of Jnana, the way of discrimination. The second path is the way of Yoga, the way of devotion. It involves in effect falling in love with a personalized figure of the divine, as did the great Bhakti saints, from the Nayanmars and Alvars in Tamil Nadu to the great Vaishnava devotees, Mirabai, Tulsidas, Surdas in central India, Sant Gyaneshwar and other great savants from Maharashtra, from Narsi Bhagat in Gujarat to Shankar Deva in Assam, and especially Sri Chaitanya in Bengal and Odisha. True bhakti involves a total surrender in love and devotion to one's chosen deity. In the West, it could be comparable to the great Christian devotees like St. Francis of Assisi, St. Teresa of Avila, and St. John of the Cross. In the Sufi tradition, we have Jalaluddin Rumi and Amir Khusro, whose devotion was directed to their gurus Shams Tabriz and Hazrat Nizamuddin. In India, the Bhakti movement had a tremendous impact in moving from the Devavani Sanskrit to the Lokavani regional languages, thus taking the message of the Upanishads right down to the common person. The third path, sorry, I put my second. Come on, let me check up my notes. Well, let me tell you, I don't need my notes actually, I can speak without them. The third main path of union with the divine is Karma Yoga, the way of action. The key to this is to be found in the second verse of the Ishavasya Upanishad. Kurvani viha karmani jiji visheshatam samah evam tvai nanyate tosti na karma lipyate nare. But it was particularly elaborated by Shri Krishna in the Bhagavad Gita. The concept is that if work is undertaken in a spirit of selfless dedication to the divine, it can also be a powerful vehicle for spiritual realization. Living as we are in an era when escaping from the world into a mountain retreat is no longer a viable option, and each one of us has necessarily to involve ourselves in outer activities, the concept of Karma Yoga is particularly relevant. This was the path chosen by Swami Vivekananda when he set up the Ramakrishna Mission and was followed by many other such organizations. In the West, this would be the way of Martha, of good works, the way of Mother Teresa, and dedicated Christian mysteries. If Jnana Yoga is the way of the mind, Bhakti Yoga the way of the heart, and Karma Yoga the way of the hands, the fourth yoga is what is known as the Raj Yoga, the royal path, the way of the breath. This involves becoming aware of and then arousing the spiritual powers inherent in the human body itself. While this yoga is mentioned both in the Upanishads and the Gita, it is in the Yoga Sutras of Patanjali
that the whole concept is elaborated. What is now known as yoga around the world, thanks to Prime Minister Modi, who persuaded the United Nations to introduce an International Day of Yoga, is Hatha Yoga, physical asanas and postures, which in fact represent only a small portion of the Raja Yoga. Regulation and awareness of our breath, which is the vital link between our body and our consciousness, is the key concept of Raja Yoga. Shri Aurobindo in his extensive works has shed much light on the higher reaches of consciousness that can be achieved through yoga. I have mentioned these four paths of yoga simply to highlight the prime importance of joining the Atman and the Brahman in our own lifetimes. Please note, the Vedanta does not postpone illumination until after death. It stresses that it is here and now, eve, that we should try and achieve the union. If we have not achieved it in our lifetimes, simply the act of dying will not bring us illumination. I should also add that these four yogas are not mutually exclusive. Each one of us can and in fact should try and partake to some extent in each one of these paths, concentrating mainly on the one that most appeals to us. We've got to use our minds, we've got to use our hearts, we've got to use our hands, and we've got to regulate our breath. So far I have covered first of the two sutras that I have chosen. Ishavasam Sarvam and Ishvara Sarvbhutanam Hriddeshe. The all-pervasive Brahman, the Atman within us, and the fourfold path of yoga to join the two. Let me now turn to the third and important well-known sutra from the Upanishads, which describes the human race as a single family, mentioned by many speakers, Vasudhaiva Kutumbakam. Ayam nija paro vedi, garanam laguchetasam, udara charitanam tu Vasudhaiva Kutumbakam. This is mine and that is yours, is a narrow and limited way of looking at objects. For those of the higher consciousness, Vasudha eva Kutumbakam, the world itself is a family. Extraordinary, thousands of years ago our rishis realized this. It is only in our own lifetimes that science and technology have actually given us the capacity to break out of the confines of our earth, reach the moon and explore planets and stars beyond. They have given us instant communications, the internet, television, and a vast array of technological instruments which have indeed made the world potentially a single unit. However, it is astonishing that thousands of years ago, our seers had realized that, in the final analysis, the human race must be looked upon as a single family. The Upanishads describe the human race as Amritasya Putraha, children of immortality. Unfortunately, despite these great concepts and the recent technological breakthroughs, our minds are still mired in pre-global concepts. And this tension, in fact, is cause of much of the turmoil that we see in the world around us. If we ever to move towards a global society, what the poet Tennyson calls the Parliament of Man, the Federation of the world, we will have to move beyond our limited nationalisms and realize that in the final analysis, we are all inhabitants of a small planet with strictly limited resources that we are rapidly destroying. The NASA photograph of planet Earth taken from outer space shows it as it really is, a tiny speck of light and life against the unending vastnesses of outer space, so beautiful and yet so fragile. This is Mother Earth, Bhavani Vasundhara, Gaia in the Greek tradition, which has nurtured consciousness up from the slime of the primeval ocean 2 billion years ago to where we are today. Unless we look upon the human race as a single family, we will surely end up by destroying both the natural and the human environment. Vasudhaiva Kutumbakam has to be the key concept of the emerging global society. Today we are destroying this tiny planet because of our ignorance. The fourth sutra from the Rig Veda, Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. The truth is one, the wise call it by naming many names. This is a very, very important concept at the heart of our
civilization. Ekam sat vipraha bahuda vadanti. The truth is one, the wise called it by many names. If Vasudhaiva Kutumbakam is the keynote of the global society, this sutra is the keynote of the interfaith movement, which began in 1893 with the Parliament of World Religions in Chicago, where Swami Vivekananda made such a dramatic impact. The sutra points out that there are many paths to the divine articulated from time to time and from place to place by great seers, prophets and avatars. For anyone to assume that there is only one path to the divine is an absurdity. Who are we, creatures on a tiny speck of dust in the universe, to lay down that the illimitable splendor of the divine can appear only in one form, in one place or in one time? This is prima facie unacceptable. There are billions of planets in our galaxy and billions of galaxies in the infinite universe around us. How do we know when and where and in what form the divine force has revealed itself? On earth itself, humanity has had numerous and varied experiences of engaging with the divine, which is why over a dozen great religions flourish around the world. I mentioned them, and there are hundreds of bypaths and further groups within each religion. While I can strongly hold that for me my path is the best, I have no right to impose this view on other people and to blow up, decapitate, torture or persecute those who do not follow my path. It is deeply disturbing that this fanaticism and hate-filled violence has most unfortunately raised its ugly head again in this century. What we thought had been firmly left behind since the Middle Ages has now reappeared with greatly enhanced technological capacities, thus in a way confirming Huntington's brilliant analysis on the clash of civilizations. I am particularly happy that my good friend Indresh Kumarji now heads the Muslim Rashtriya Manch. I happen to come from a Muslim majority state, and therefore it is very important that the large millions and millions of Muslims who live in this country have got to be looked upon as members of one family. We have already suffered once by the division, which created the greatest mass emigration in history. 1 crore people, 10 million people were unhoused and had to move. 1 million people lost their lives. We don't want that to happen. We've learnt a bitter lesson. And we have now must to realize that if Ekam Sat Bahuda Vadanti, if it is true, then we've got to make efforts to help and integrate all the sections of society, particularly the so-called minorities, although there's so many Muslims you could hardly call them a minority, and Christians and other religions. The interfaith movement, in fact, is dedicated to the principle of the confluence of religions, of civilizations, not the clash of civilizations, to which India for thousands of years had made a major contribution. It seeks to bring together in a harmonious dialogue leaders of different religious persuasions and sects so that they can seek to better understand the essential teachings of each religion. If I may take you into confidence, I am now anchoring a serial by Sansad TV called Ekam Sat at my suggestion. And we have presented already all the people from different religions in India. I am the host, I anchor it. It's been going on for 3 months now. आप लोग उसको सुन सकते हैं. संसद नामक टीवी पे एक सीरियल चल रहा है जिसका अनुमान है एकम सत, मेरे ही सुझाव पे. उसमें हमने प्रत्येक जो धर्म है उन धर्म के अवलंबी, उन धर्म के जहाँ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको हमने प्रस्तुत किया है ताकि वो अपने अपने धर्म की बात करें और अपने धर्म की जो विशेषताएं हैं उनको हमारे सामने रखें. तो वो कार्यक्रम चल रहा है 3 महीने से. आप लोग शायद YouTube पे में सुन सके या नहीं सुन सके. If we leave aside theological subjects such as rebirth, there are many issues upon which various religions of the world hold largely similar views.
Let's not get into theology. Half the world believes in rebirth, half the world doesn't. Now, we can go on arguing for centuries about, we don't have to argue those sort of theological issues. But they include protecting and nurturing the natural environment, helping the poor and needy, ensuring the dignity and security of women, and so on. Since 1893, numerous interfaith organizations have come into being, including the Temple of Understanding India Forum, of which I am president. We have held a series of meetings and seminars and other programs to spread the message of Ekam Sat Vipraha Bahuda Vedanti. I must admit, however, that unlike the environmental movement, which has moved rapidly to the center of human concerns, the interfaith movement is still peripheral. I suggest that all those of us who are involved in the philosophical arena should pay special attention to this aspect of the contemporary human condition. The fourth and last sutra that I am going to put before you is a prayer, Bahujana Sutaya Bahujana Hitaya. May everybody be happy, may everybody be healthy. What greater prayer can there be of that? I was asking my communist friends, there's many definitions of communism, from Fabian socialism to Marxism, Leninism to Maoism and Shiism and so on. But this simple slok, Sarvepi Sukhina Santu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashit Dukha Bhagvavet. May all beings be happy. May all beings be without disease. May all beings perceive auspicious sights. May no one have to undergo suffering. What greater ideal can there be than that? And therefore it's important that we understand that this highly idealistic concept shows that Vedanta includes special emphasis on improving the lot of every human being. In fact, the Vedas go one step further and speak of the welfare of animals and trees, rivers and oceans, mountains and forests. Why do we have the tradition? Ye Devi ka van hai, ye Shivji ki bauli hai, so that we revere our natural environment. Clearly, the ancient rishis were aware that if we destroy the natural environment, sooner or later the human environment will also be destroyed. This has been brought home to us sharply over the last few years. And now there's a last-ditch attempt to reverse the lethal process of global warming that now threatens to overwhelm the earth. Taken together, I submit that these 5 sutras that I have placed before you, Isha Vasamitam Sarvam, the all-pervasive divine, Atman in every Ishvara Sarvabhutanam Hiddesha Tishti, the Lord resides in all beings. Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family. Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti, the truth is one, the wise call it by many names. And Bahujana Sukhaya, Bahujana Hitaya. May all be healthy and may all be wealthy. These 5 sutras taken together represent a holistic philosophy in contradistinction to the highly acquisitive, violent, contemporary society that we see around us, where corruption flourishes because of greed. Gandhiji once said, there is enough for every person's need, but not enough for one person's greed. So this sort of situation which we today have, this will finally destroy the earth. We have to turn our minds around. And I have tried to present an alternative, holistic philosophy which could perhaps help us in the very difficult task that we have before us. And that is to create a new society, a new world. We've got to arise and awake. As the Katha tells us, Uttishtata Jagrata Prapya Varan Nibotata Kshurasya Dhara Nishita Duratya Durgam Pathasat Kavayo Vadanti. We have to arise and awake and walk across the razor-edged path. There are no soft options left, friends, either for individual realization or for collective emancipation.
We've got to go across that difficult and dangerous path towards our goal. And what is our goal? Our goal is a new society, a new global society, a new world, a new consciousness, a new level of awareness, a new human civilization. That is what is needed in the present crisis, and that is the message that I would like to leave with this distinguished gathering on this significant occasion. May the divine force be with you. Namah Shivaya. हम अपनी अपनी जगह पे खड़े होके तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट करेंगे पद्म विभूषण डॉक्टर करण सिंह जी के लिए कि उन्होंने उनके बहुत उम्दा विचार श्री प्रमोद कुमार जी मेरे भाई और बहनों, मुझे ये मालूम है और नॉर्मली जब keynote speech and the presidential speech is over, we should not comment upon it. But आज दर्शन हुआ क्षात्र तेज और ब्राह्म तेज का. ये भारतीय संस्कृति का सुंदर दर्शन है. एंड वसुदेव कुटुंबकम मैसेज जो मिला है कि देखो इसलिए शायद काशी आना हुआ. पटवर्धन जी, अविनाश, गुरुजी, आपलं इथे येणं जे आहे ना याच्या करता होतं. हा आत्ताचा जो त्यांचं बोलणं आहे, स्पीच जो आहे, तर वी आर गोइंग टू हॅव ऑन द थर्ड डे, दैट इज डे आफ्टर, ए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डिक्लेरेशन. नॉलेज डिक्लेरेशन की बात है तो शायद दिस कैन बी द गाइडिंग लाइट एंड एग्जैक्टली द पाथवे हाउ टू ड्राफ्ट द काशी विश्वनाथ डिक्लेरेशन, कॉरिडोर डिक्लेरेशन. तो आपकी इजाज़त से ये बनाएंगे. ये पंचशील जैसा लगा आपका, पंच तत्व जो बोले ना आप, तो वी विल मेक इट. पटवर्धन जी, अविनाश, जरा सहकार्य करा आणि एक वेगळं ऐतिहासिक असं डिक्लेरेशन भारताच्या नावावर. मला वाटतं ही इज रिप्रेझेंटिंग द होल ऑफ इंडियन कल्चर अँड ट्रेडिशन. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. प्रमोद कुमार जी के हाथों पद्म विभूषण डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान. बहुत बहुत आभार. And now I would like to request the Secretary of MAEER's MIT Group of Institutions, Pune, Bharat, Professor Swati Karat Sathe Madam, to kindly propose vote of thanks for the inaugural session. I request, मैं सभी उपस्थित अतिथियों से विनती करूंगा कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण करें. Over to you, ma'am. Thank you, Gautam. Namaskar. Good morning. The 9th World Parliament of Science, Religion, Spirituality and Philosophy to promote the culture of peace on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam. I think we all are feeling blessed and privileged to listen to the greatest words of Honorable Chief Guest of today's function, Honorable Shri Karan Singh ji. Sir, I feel that you have really made us realize the very concept of this conference that is being carried out. This is the 9th one. I think this effort itself is about making everyone understand that if we have the foundation of our life as spirituality and we understand how to really make use of science and technology in the appropriate manner, then we can have peace, because peace is not something that we get it and it's there. It's a continuous process. So to understand what really peace means, and when you feel peaceful, if we have spirituality as the foundation of our life. So we are so grateful to make us understand. This will really help us follow this path of peace in our life journey. Thank you very much, sir, for blessing us. I'm really grateful
on behalf of MIT family, to Shri Indresh Kumarji for sharing his valuable thoughts and making us understand that how the coexistence not only of human beings, different religions, but everything that is in the universe has to coexist, and how do we really achieve? With that only we can have peace on this earth. Thank you very much, sir. We are grateful to Honorable Shri Swami Yogi Amarnath ji. Your words were really inspiring. I think our younger generation, every one of us, will really work upon it as an educational organization. We look forward to such visions to, impart in the system. We are really grateful to you, sir. I think we have Dr. Bhushan Patwardhan ji here, Avinash Dharmadhikari ji, Dr. Sunil Rai, many other dignitaries who are going to be there in the next session. We all are really grateful to you, the press and the media, for really helping us promote this very cause throughout the world. We are thankful to you. I'm grateful to everyone sitting on the dais, for coming here in this very corridor. As Karan sir said, this is a journey from the knowledge corridor of Alandi to the knowledge corridor of Kashi-Vishwanath Dham. This is really inspirational, and I'm sure we all will thrive our level best to promote this culture of peace and Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you very much, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंच पर उपस्थित जी एक प्राणायाम करेंगे, 1 मिनट का काम है। मदर, मदरलैंड और मदर अर्थ। रीढ़ सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और आंखों में जो अपनी अपनी माँ है उसको कैलाश मानसरोवर से लेकर अशोक वाटिका, हिंद महासागर तक मदरलैंड को और मदर अर्थ को, ये सब माँ है। तो आंखें बंद करेंगे, रीढ़ सीधी, सांस ले लेंगे, 3 बार एक्सरसाइज करेंगे और माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। मैं भी करूँगा, आप सब भी करेंगे। सांस खींचना, 1 माँ, सांस भरना, 2 सांस भरना, 3 रिलैक्स होना, आंखें खोलना। I hope so everyone felt relaxed, no tension. We felt relaxed or not? If relaxed, hands up. मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय जगत। जय भारत, जय जगत। मैंने लगभग देश में 1 लाख लोगों पर इस प्रयोग को किया, माँ रूपी प्राणायाम में। शुरू किया था केरल में ईसाइयों से और तमिलनाडु में मुसलमानों से, क्योंकि मेरा लगभग 20-25 लाख मुसलमानों से डायलॉग है। भारत और विश्व में 1 लाख के लगभग ईसाइयों से है, नव बौद्ध आदिवासी लगभग 10-12 लाख से। तो माँ में किसी को एतराज नहीं हुआ। कुछ जगह पर तो अपनी माँ याद आने पर लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये माँ रूपी प्राणायाम, इट्स यूनाइट्स ऑल, और जहाँ इसको ले जाना चाहिए मानव को, किसी भी धर्म जाति का, वो उस तरफ उसको ले जाता है। इसलिए युद्ध मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त और प्रदूषण मुक्त, सबको छत, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको शिक्षा, सबको सम्मान का ये प्राणायाम एक यूनिक इनोवेशन है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. Thank you very much, all dignitaries on the dais. Thank you very much. With this, we conclude the first session, and we immediately going to start the next session. Session 1 from Philosopher Saint Shri Gyaneshwara, World Peace Dome, Pune, India, a spiritually oriented scientific laboratory to Kashi-Vishwanath Dham. Check. I now request Shri Avinash Dharmadhikari ji, Dr. Basant Gupta ji, Shri Pramod Kumar ji, Shri Sudhir Kumar Jain ji, Maulana Kabir Rushaid Rizvi ji to kindly grace the stage. कोणताही ब्रेक नाहीये. मी सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की बसून घ्यावं. कोणताही ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है इस सेशन में. मैं सभी उपस्थितों से अनुरोध करता हूं कि वे बैठे रहें. सचिन मुंडेजींना विनंती की त्यांनी कृपया सर्वांना स्थानापन्न करून घ्यावं. सभी उपस्थितों से विनती कि वे बैठ जाएं. कोई भी ब्रेक इस सत्र में नहीं है. I once again request Shri Avinash Dharmadhikari ji, Dr. Basant Gupta ji, Shri Pramod Kumar ji, Professor Sudhir Kumar Jain ji, Honorable Kabir Rushaid Rizvi ji, and Swami Yogi Amarnath ji to kindly stay with us on the stage. उपस्थित अतिथियों से विनती है कि वे अपने अपने स्थान पर बने रहें. इस 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन फिलॉसफी के पहले सत्र की शुरुआत अब हो रही है. सभी अतिथियों से विनती है कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें. सभी अतिथियों से विनती है कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें. उपस्थित सर्वांना विनंती की त्यांनी देखील स्थानापन्न व्हावं.
मैं सभी से विनती करूंगा कि अब वो अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। मैं फिर से एक बार मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अविनाश धर्माधिकारी जी को, ऑनरेबल डॉक्टर बसंत गुप्ता जी को, श्री प्रमोद कुमार जी को, प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन और ऑनरेबल कबेरुशेद रिजवी जी, स्वामी योगी अमरनाथ जी, इन सभी से विनती है कि वे मंच पर आए और अपने अपने स्थान ग्रहण करें। मैं रिवर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर, and now I request everyone in the audience, सभी से विनती है कि वे बैठ जाएं। मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगा श्री अविनाश धर्माधिकारी जी को कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर बसंत गुप्ता जी, डॉक्टर बसंत गुप्ता जी, मैं एलओ टीम से विनती करता हूं कि वे डॉक्टर बसंत गुप्ता जी को मंच पर ले आएं। I request Shri Basant Gupta ji, Professor Sudhir Kumar Jain ji to kindly come on stage. मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। स्टेज के सामने उपस्थित सभी को विनती, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। Dr. Milind Patre is requested to come backstage. Dr. Milind Patre is requested to come backstage. All student volunteers of MITWPU, please request to everyone to please be seated.
MIT WPU के सारे छात्राओं से विनती है कि वे लोगों को बिठाएं। My friends, with this we are all set to begin with the first session from philosopher Saint Shri Gyaneshwara World Peace Dome, Pune, a spiritually oriented scientific laboratory, to Kashi-Vishwanath Dham, a divine knowledge corridor. Do we have Dr. Milind Patre around? Thank you. I now request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries of this session. I now request sir to kindly felicitate and welcome the very first dignitary on the dais, President of Chanakya Mandal, Pune, Bharat, Honorable Shri Avinash Dharmadhikari ji. Let's welcome with a big round of applause. टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण स्वागत करूया श्री अविनाश धर्माधिकारी जी यांचं. I now request sir to kindly felicitate and welcome the eminent former diplomat from New Delhi, Honorable Dr. Basant Gupta ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome the former Tourism Minister of the State of Bihar, Honorable Shri Pramod Kumar ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome a renowned social and cultural revolutionist and Islamic scholar all the way from New Delhi, Honorable Kalbe Rushaid Rizvi ji. Thank you very much. I now request my technical team if they can please relay the curtain raiser video. This session is based on the topic named as From Philosopher Saint Shri Gyaneshwara World Peace Dome, Pune, India, a spiritually oriented scientific laboratory, to Kashi-Vishwanath Dham, a divine knowledge corridor. True growth and evolution of the human persona is not possible without adding to one's knowledge, analyzing, questioning, and discovering answers. It was with this purpose and vision that the World Peace Library was constructed at the World Peace Dome. The library houses thousands of books and scriptures related to religion, spirituality, science, and philosophy from across the world. In the middle of the library is a circular room where one can study about the ideologies and histories of various religions of the world: Judaism, Hinduism, Islam, Christianity, Zoroastrianism, and Sikhism. One learns about the differences as well as the similarities. In this session, we will talk about philosopher Saint Shri Thank you very much.
और इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं फैकल्टी ऑफ पीस स्टडीज MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद पात्रे जी से विनती करूंगा कि वे हम सभी को मेडिटेशन की अनुभूति दें। डॉक्टर मिलिंद पात्रे। नमस्कार, सभी का स्वागत। अभी कुछ ही क्षण पहले हमने माननीय इंद्रेश जी कुमार इनसे माँ रूपी प्राणायाम इसका हमने अनुभव लिया और उन्होंने काफ़ी सही तरीके से कहा कि माँ ये शब्द जो है ये किसी संप्रदाय में किसी का एकाधिकार नहीं है, सभी का ही है। ठीक इसी प्रकार से ओम भी ये जो शब्द है वो एक कॉस्मिक एनर्जी है। This is a primordial sound, this is a primordial force, this is the primordial beginning. और इसका भी किसी एकाधिकार या किसी संस्था, धर्म, जाति के साथ कोई संबंध नहीं है। सिर्फ उसमें अगर हम सम्मिलित हो जाते हैं तो एक अलग प्रकार के चैतन्य में जगत में हम प्रवेश कर जाते हैं और फिर तभी हम समझ पाते हैं जो उद्देश्य है वर्ल्ड पार्लियामेंट का, एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। तो आइए हम सब लोग 2 मिनट के लिए उसी ओमकार की साधना में डूब जाए। जब संगीत में ध्वनि होगी तब आप भी उसके साथ सम्मिलित हो जाए, खुद भी आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और उस ओमकार के साथ इस पूरे सभागृह में एक वाइब्रेशनल एनर्जी में हम लीन हो जाए। मैं विनती करता हूँ कि सबसे पहले हम सब लोग शांत बैठ के स्थिर हो जाएं। प्लीज टेक अ कंफर्टेबल पोस्चर। बिल्कुल शांत हो जाए, पूरा सभागृह बिल्कुल शांत, रिलैक्स, आंखें बंद रखें और आप भी सम्मिलित हो जाएं। आप भी खुद ही दस सेकंड बिल्कुल शांत, मोमेंट ऑफ साइलेंस। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलिए और वापस लौटाएं। प्लीज ओपन योर आईज। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन ओम। थैंक यू। Thank you very much, sir. And with this, let us begin the discussion and knowledge discourse in this first session of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. The first speaker of this session is the President of Chanakya Mandal, Pune, Bharat, Honorable Shri Avinash Dharmadhikari ji, who is a full-time voluntary activist for almost last 10 years before joining IAS, a freelance journalist during the same period, and he undertook an extensive study tour of the country, and outcome
was a book called Aswastha Dashakachi Diary. Based on the reflections and experiences of his visit, he then established Chanakya Mandal as the public charitable trust in the city of Pune, whose work is well renowned. Let us put our hands together and welcome with a big round of applause to address the gathering Shri Avinash Dharmadhikari Ji. Honorable Chairperson of this session, respected Yogi Ji, Honorable and visionary founder of this great educational undertaking that is already making India proud, Honorable Founder Dr. Vishwanath Karad sir, we fondly call him as Karad Guruji. And I have always maintained that let sooner rather than later, when the alphabets MIT come up, the world think of this MIT and not only the Massachusetts Institute of Technology, but MIT founded, created by Dr. Karad sir. With great honor, in fact, I repeat my words that MIT has already done India proud. And from undertakings like the temples at Badrinath to the world's largest dome, and now that all of us are here, this is the great legacy of Bharatvarsha, the great legacy of saint poets who of course taught us all yoga and how to understand that oneness. MIT as organization and Karad Guruji as person represent that sense of oneness. So respected dais and all my sisters and brothers sitting here, I want to start by mentioning my sense of deep gratitude. That sense of deep gratitude that doesn't have enough words. The Marathi, Hindi or Sanskrit word is Krutagyata, and that intensity in the word Krutagnata does not really get translated into English. So I will stick to this word. The sense of Krutagnata towards the Parliament of Religions, towards MIT, towards Karad Guruji, for indeed giving me this opportunity to be here, opportunity to talk to you. Since the moment we stepped into this campus, every single second has become enlightening second. I have been to Kashi-Vishwanath many a times, and I would not have used the words I am now about to use. I would not have used the words if the scene was not so fundamentally changed. But fact of the matter is, as a Bharatiya human being, it used to pain my heart to see uncleanliness around Tirtha Kshetra. This is that same sense of pain that I am sure even Vivekananda must have felt
when he was traveling all over India before he proceeded to the first ever Parliament of Religions to explain the meaning of Dharma to the whole world. It used to pain me. And now that since this morning we see the whole scene, it is completely transformed. You begin to actually feel the presence of divinity. And of course, as a Bharatiya, you feel like proudly raising your head, and I'm sure it is transforming the consciousness of Bharatvarsha. That is yet another of my reason for feeling grateful towards Karan sir for giving me this opportunity to be here. This is the session designed for discussing relationship between Adhyatma and science. And we have to follow the discipline, punctuality, and the time allotted to every speaker has to be followed. So I appreciate that board over there that is displaying, telling the speakers, you are left with how many minutes. As of this moment, it is showing me 6 minutes. I am happy to say that I do not even need 6 minutes. For 2 or 3 very simple reasons. One is what Dr. Karan Singh ji spoke has already set us on that path of knowing oneness between Adhyatma and science. You must be noticing that I am using the word Adhyatma, not spirituality, because not many original Sanskrit, that is Bharatiya terms, are correctly translatable in English. English is an inadequate language for that. English is rich, of course, when it comes to matters of science and technology. But the whole language of Adhyatma, therefore I am using the very word Adhyatma and hoping that even English adopts the same word Adhyatma. Adhyatma and science are one and the same. There was a time when people used to say that Adhyatma begins where science ends. That kind of argument came from the awareness that science talks of what and how, but science may not necessarily talk of why. Science says we'll explain these phenomena. These are the phenomena and the cause-effect relationship which defines science. But why do we exist? Why does all this take place? Why do we live? The very core questions of koham. So people used to say, no, science doesn't talk about that. That is where Adhyatma philosophy takes over. But I'm sure as even our development, our evolution goes on, we will see that it's not like science ends at a place and then Adhyatma begins. Probably a metaphor would be 2 sides of the same coin. That they are so one, they are together, they are 2 sides of the same coin, and then as we also develop better and we develop our understanding of oneness, in fact we will see that they are not even 2 different sides of the same coin. All you can say is they are methods in search for truth. And then someone can probably come up and say that science searches for truth in what is called as the outer world, while Adhyatma looks for the truth in the inner world. And now we have reached that stage where that so-called outer world and so-called inner world are telling us one and the same conclusion.
So much so that there is no outer world and there is no inner world, there is one, the feeling, the experience of oneness. Words like inner and outer are only relative words created by illusion. This year's Nobel Prize for Physics has gone to 3 scientists who proved that the world that we see is an illusion, Maya. It doesn't mean it is false. It means the world as we see, the empirical world, does not necessarily represent the truth as we understand, as we need to understand. We need to go beyond that. Science and philosophy, science and Adhyatma are already one. When even Swami Vivekananda told us about the unity of religion and science, and that journey also goes on for 125 years, where even science has now proved that the entire universe, and not only the universe in which we live, multiverses, many Ananta Koti Brahmanda, they come into being from one Chetana. You can call it energy, we can call it Brahma, and address it with any which name that we want. All that variety that we see is from that one. Ekoham Bahusyam. And then the unfolding of the whole universe. Our job as human beings is to understand that oneness and express it through us. Science, it won't be wrong to say that science has actually proven the truths expressed in our Adhyatma philosophy. Finally, the oneness, non-duality, Advaita, oneness, the non-duality, and therefore also shown us the path. This oneness in Adhyatma and science will help us solve even environmental problems. Oneness in Adhyatma and science will also help us deal with economic issues and teach us to live a simple life at personal level, a non-polluting, non-exploitative life at personal level. And once we understand that the whole world is interlinked, interdependent, and finally it is one, more we understand that, how can we hate someone else? How can we take to violence when we know that you are me and I am you? The principle of Tattvamasi. So that oneness of Adhyatma and science will definitely come up as a solution to even contemporary human issues. With that, I thank all of you. I express all eternal, absolute best wishes for all of you. God bless everyone. बहुत बहुत शुक्रिया श्री अविनाश धर्माधिकारी जी का कि he made us realize the importance of knowledge divine. Thank you, sir. Thank you very much. And my friends, it's now time when I invite the next guest speaker of this session, the eminent former diplomat, Dr. Basant Gupta ji, the ambassador of India to Italy with the concurrent accreditation to the Republic of San Marino and permanent representative of India to FAO, IFAD and WFP. Having joined the Indian Foreign Services as the career diplomat in 1979, the additional secretary has a rich experience of over 3 decades in diplomacy and international relations. During this period, he has served in the different world capitals and Ministry of External Affairs in New Delhi. He has participated in a number of international conferences and seminars. Let us put our hands together and welcome with a big round of applause Dr. Basant Gupta ji. Distinguished guests, ladies and gentlemen, सुबह से बड़े ध्यान से सारे speeches सुनी. Most of what I wanted to say has been said, but still I have a few points that may be slightly different. Firstly, I heard, as usual, Professor Vishwanath Karat ji, who
is the fountainhead of wisdom. And he talked about God's grace. He said the Saraswati temple got built because of his grace. Now in the Gita, there is a beautiful verse towards the very end, when the knowledge is being summarized by Shri Krishna. He says, Ishwar sarvbhutanam hrideshe arjun tishtati. Brahmyan sarvbhutani yantrarudani maya. Now the key verse is, Tamev sharanam gach sarva bhaven bharat tat prasadan param shanti sthanam prapsyasi shashvatam. Take refuge, take shelter at the feet of that God, the Paramatma. You may call it Brahm, Paramatma, Bhagwan. It's only due to his grace that you can have Param Shanti, the enduring bliss, which is again, as we say, Satchit Anand, one of the three attributes of the Supreme God. So bliss, once you attain God, the divinity, bliss is already there. The Param Shanti is just a step before you attain the bliss. So that's the idea that came to my mind. Now, the theme of G20 this year is Vasudev Kutumbakam. But sometimes we make a mistake by not reading the whole sutra carefully. It says Udar Charitanam Tu Vasudev Kutumbakam. That's for the noble people. It's not everybody. Everybody in the world does not subscribe to the concept of Vasudev Kutumbakam. That we have to know. As professional diplomats, as practitioners of international affairs, that it is not an easy journey. As Dr. Karan Singh said, this is a very tough journey. It's like walking on talwar ki dhar. It's not easy because you have to convince people who have a different philosophy. So it's only the noble-minded, the virtuous, the good people who believe in Vasudev Kutumbakam. Now what is the basis? A lot has been said about the concept of Atma. I was posted in Algeria and I was talking to an Islamic scholar and he said the greatest contribution Bhagavad Gita has made is the concept of Atma. Now Atma moves in three ways. I'll quickly touch upon three verses. First is Nanam Chindanti Shastrani, Nanam Dehati Pavaka, Na Chenam Kledyanti Apona Soshati Maruta. That weapons cannot cleave it, fire cannot burn it, water cannot moist it, and so on. Which means Atma, Azar, Amar, Nitya. These are the qualities, eternal. Now that is the experience within. I cannot go and tell you, oh, what's happening with your Atma? Because that is your own realization. That's why in Sanatana Dharma we talk about self-realization. Something you have to realize yourself. Gita talks about Swadharma. My own duties. I cannot go and tell the whole world, you have to do these duties. No, you have to do your own duties. So similarly with Atma, you have to understand that Atma is the basis of the Gita. There are a number of verses. Avinashit Tadvidhi. Actually in chapter 2 verse 17, the first time, Atma is referred to as Tad. That. In the third person. But nobody can understand. It's so subtle. Subtle than all the five Mahabhutas, the elements. And nobody can see it. If you can't see it, the scientists will not accept it, that it exists. But it can be experienced. Somebody asks, does Ram exist? The answer is very simple. Yes, Ram existed. As long as love exists,
Ram exists. Because Ramayana's basic philosophy is that of love, prem. So that is from the point of view of Atma. The second verse says that the Atma that's in me is the same in you. Yomam pashyati sarvatra, sarvam cha mai pashyati. Tasyaham na pranashyami, sachme na pranashyati. Taken you to chapter 6, verse 30. And before that, 29 is equally wonderful. It says, Sarvbhut sthitam atmanam sarvbhutanam chatmani. Kshate yog yuktatma sarvatra samdarshan. Person who is connected with his soul becomes samdarshi. The beautiful song, bhajan, which used to say, samdarshi hai naam tihar. God is samdarshi. God has equal vision. Like you look at the sun god. He throws light on everybody equally, whether the recipient is a saint or a crooked person. Gita ji, we are on the banks of the Gita. Gita's water is, Ganga's water is for everybody. The holy river does not discriminate between the good and the bad. It's only humans we start this discrimination because we lose equal vision. Unless there is equal vision, you cannot have Vasudev Kutumbakam. And finally, when you take it to cosmic oneness, you say, Ishwar Sarvbhutanam Rita Deshe Arjun Tishtati. Now, I was talking to a small group and saying that Krishna says this. And a little girl, she got up and said, Guruji. So I was a bit taken aback because nobody had that time addressed me as Guruji. But he says, what is the difference between superconsciousness and Krishna? Little girl, 9, 10-year-old. I say one and the same thing. When you look at the Sagun form, it is Krishna. When you look at the Nirgun form, it is consciousness. Now there are two very important verses. One is a lot we hear about Ramcharitmanas and Ramayana. Tulsidas ji had said something which is extraordinary. Right in the Balkand, in the beginning, Tulsi says, Siya Ram mein sab jag jani, karahu pranam jori jug pani. That I look at everybody as Sita and Ram. Wherever I look at the light of God, light of Sita and Ram. And the same thing Krishna has said roughly 1,000 years later in the Gita, where Krishna says, chapter 7, verse 19, Bahunam janma namante jnanmanam prasyate vasudev sarvamiti. So, Mahatma Sudurlabha. That it's only after several lives, jap tap meditation, dhyan, that a realized saint, a realized Jnani has this awareness that all that exists is God, nothing else. So we have taken from one's soul to everybody's soul to cosmic soul. Now when you say that the entire cosmos is pervaded by the soul, then where is the difference? Where is the fight? Now, on this philosophy, I briefly touched upon the concept of love, which is the basis. And in fact, one of my teachers who lives in Berkeley, he told me, Basant, the most important verse, remember, is from chapter 12, Bhakti Yoga, verse number 13. Adveshta sarvbhutanam, maitra karunevcha, nirmamo nirankare samduk sukha. Kshami, that you have to have no ill will, no animosity, no hatred towards fellow human beings. Must say it's very easy to love God, easy to love Guru, easy to love well-to-do people, Jnanis. But can we love the downtrodden? Can we love the sick, the poor? In fact, Gandhi famously said,
कि गरीब के लिए तो रोटी में ही राम है. In fact, when Buddha was teaching his great philosophy, the most of the audience comprised well-to-do business people, trading people, well-off people. The poor have no time. And today is the time when we combine everybody under one roof, under one forum, so that this equal vision comes true. Now finally, as Dr. Karan Singh was saying, that Atma is a divine spark. Now there's a beautiful verse in chapter 15, take you to chapter 15, verse 7, which says, Mamevansho jeev loke, jeev bhuta sanatane, manaya shashtani indriyani prakriti stani karshati. Krishna says that a spark of mine pervades all as the divine soul. Now, the last shloka that I'll refer to is the concept of universal welfare in the Gita, called Lok Sangraha. Now, when we talk about Karma Yoga, the philosophy of karma, there is a beautiful verse, chapter 3, verse 20, says, Karmanyevi sansiddhim asthita jankadaya lok sangraham evapi sampashyan kartum arasi. Gita's ideal Shri Ram Janak. And it says, through universal welfare, through detached action for public welfare, great souls, Gyanis, like Janak, were able to attain the stature that they did. With all these, thank you very much. I once again thank Karan sir. I used to call him a Karma Yogi, but I think he is a true saint in the real sense, the work he does, and I always look forward to coming and presenting some of my humble thoughts. Thank you. Bye. Thank you very much, Dr. Basant Gupta ji. Thank you very much for your thoughts. My friends, the next guest speaker is the Honorable Minister from the state of Bihar, Shri Pramod Kumar ji, who is a prominent politician from the state of Bihar and is currently serving as Minister for Sugarcane Industry and Law in the government of Bihar. He represents the Motihari constituency in Bihar Legislative Assembly and belongs to Bharatiya Janata Party. It is indeed our good fortune that we have him here today. Let us put our hands together and welcome with a round of applause Shri Pramod Kumar ji. काशी विश्वनाथ की ऐतिहासिक नगरी में आज वर्ल्ड पीस ऑफ यूनिवर्सिटी के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभ अवसर पर डॉक्टर अविनाश धर्म अधिकारी जी, डॉक्टर बसंत गुप्ता जी और हमारे बिहार के सम्मानित रिजवी साहब और स्वामी योगेश जी और यहाँ इस सेमिनार में बुलाने वाले विश्व इंस्टीट्यूट के हमारे डॉक्टर विश्वनाथ करार जी, एक बार ताली बजाकर उनका अभिवादन कीजिए। बहुत सारे व्याख्यान आए, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता, जिसका ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम मानव नहीं महामानव में लिया जा रहा है। मानव नहीं महामानव में, यह भी एक ऐतिहासिक क्षण है। उसी प्रकार पूरे दुनिया में धर्म, विज्ञान और दार्शनिक, यानी जो ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के जो विश्व शांति वर्ल्ड पीस ऑफ यूनिवर्सिटी का जो स्तूप है,
उसके निर्माता के रूप में, उसमें ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का जो पूरी दुनिया में एक अनोखा स्तूप स्थापित करने और जो अभी पूरे दुनिया का G20 जो भारतवर्ष में आयोजित हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के लोग आएंगे और निश्चित तौर पर ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के केंद्र को देखेंगे और आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के विश्वकर्मा के रूप में आज हमारे डॉक्टर विश्वनाथ करार जी जाने जाएंगे। जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है और भारत का कंकर कंकर शंकर है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये है भारत का अध्यात्म। शंकर, भगवान भोले शंकर विष पी गए और अमृत दिए, यह भी एक विज्ञान है। परशुराम पुष्प विमान का पर चढ़कर और श्रीलंका से अयोध्या आए, यह भी एक विज्ञान है। तो हमारे जब से सृष्टि है तब से हमारा विज्ञान है, हमारा अध्यात्म है और हमारा ज्ञान है। ये भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र का ये तीनों अभिन्न अंग है। इसके बिना भारत की कल्पना करना अधूरा है। और मित्रों, हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज जो आज से लगभग 450 वर्ष पहले, उन्होंने जो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भक्ति काल के आरंभ में जो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो गीता को सरल भाषा में, गीता को सरल भाषा में और बोलचाल के भाषा में गीत गाकर, संगीत के माध्यम से और गांव के जो समझिए कि एक तरह से सुदूर गांव के जो अबला दुबला लोग हैं, जो बहुत ज्ञान की बात नहीं समझते हैं, लेकिन कीर्तन भजन के माध्यम से वह गीता और ज्ञान की बात समझते हैं। कीर्तन भजन के माध्यम से वह भारत के अध्यात्म को समझते हैं। तो उसकी जो प्रेरणा मराठी में आज हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो किया, मात्र 15 वर्ष के उम्र में, वह भी एक अध्यात्म और ज्ञान और विज्ञान का एक अनोखा उदाहरण है, जो 15 वर्ष के अवस्था में ये संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो इस काम को ग्रंथ के माध्यम से किया। और इस प्रकार जो भक्ति का और भावना का प्रवाह पैदा करने वाले ग्रंथ बना दिए और उन्होंने आम लोगों के बीच में ईश्वरीय चेतना का संचार करते हुए स्थापित किया कि भगवान की कृपा सबके लिए बराबर है, चाहे उसका जन्म सामाजिक व्यवस्था में जिस जाति के अंदर हो। और संत ज्ञानेश्वर जी ने समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े, उपेक्षित, वंचित और जो समय आडंबर था, अंधविश्वास का आबंडर पैदा करने में और समाज को प्रताड़ित करने वाले जो लोग थे, उनके बीच गीता के दर्शन को सहज और सरलता से प्रस्तुत कर ज्ञान और भक्ति ज्ञान का अधिकार सबों के लिए दिया। ये भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की ये अनोखी जो है पहल थी। और इस परंपरा की कृपा से
भक्ति के जरिए एक जाति को प्राप्त हो सकती है, ऐसा बात नहीं है। हम सब बैठे हैं, मनुष्य है। अब इसमें से हम पूछे कौन किस जात का है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो ये भक्ति का भाव है कि मानव सृष्टि का एक समान और एक अध्यात्म है कि हर लोग मनुष्य और मानवता की बात करते हैं, और यही मानवता भारत की संस्कृति का, वसुधैव कुटुंब का जो उद्बोध करता है। और इसका भावार्थ है कि दीपिका और ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ, जो उपेक्षित दलित वंचित समाज के लिए गौरव के ग्रंथ कहा जाता है, जिसके जरिए समाज के अंदर जो भी उपेक्षित जाति के बीच में परम ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की कृपा, अधिकार तथा नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। हालांकि महान संत ज्ञानेश्वर जी महाराज 21 साल की उम्र में ही समाधि ले लिए। 15 वर्ष में लिखे, लेकिन 21 साल में ही समाधि ले लिए। यह भी एक ज्ञान की बात है। और हमारे जो ईश्वरीय काशी का, जो विश्वनाथ काशी का जो अध्यात्म पूरे दुनिया में सनातन धर्म के जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जो भी हमारे ज्ञानी हुए हैं, महर्षि अगस्त महाराज, धन्वंतरी महाराज, गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा कीनाराम, लक्ष्मीबाई और पतंजलि, और इस प्रकार स्वामी रामानंदाचार्य, और इस प्रकार जितने भी दुनिया में जो हमारे आदि गुरु से लेकर संत ज्ञानेश्वर और जो भी संत समागम के जो भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र के जो महापुरुष हुए हैं, उनकी सिद्धि इसी काशी विश्वनाथ की ऐतिहासिक धरती पर हुई है। और एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्र की मोक्ष की भूमि ये काशी विश्वनाथ है, जहां ईश्वरीय ज्ञान चेतना की राजधानी इसे हम कह सकते हैं। यही क्षेत्र अविनाशी महाकाल के त्रिशूल पर विराजमान है। ये बाबा विश्वनाथ महाकाल के त्रिशूल पर विराजमान है, और भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र को भगवान शिव की चिता भूमि होने का गौरव प्राप्त है। भगवान शंकर जी भी वंचित, पीड़ित, शोषित और उपेक्षित समाज के देवता थे। उसी प्रकार जो है ये विश्व विख्यात संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भी उसी के प्रेरणा के स्रोत थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो ये बनारस ऐतिहासिक भूमि है, ये संगीत, त्याग, संन्यास के व्याप्त संपन्न यह प्रमाण है। और वाराणसी में का साधक समाज प्रदान करता है, तथा महान संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, आदि शंकराचार्य और भारत के किसी भी क्षेत्र में पैदा साधक वाराणसी में आकर पूर्णता प्राप्त करता है। ऋषिदेव और सकल पुराण और महाभारत में काशी का वर्णन आया है। महावीर, बुद्ध और महाभारत के भीम का संबंध काशी से रहा है। यह ज्ञान, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म, तंत्र मंत्र तथा अघोर पंथ सिद्ध संतों की नगरी है। और रोम, यूनान, वेनिस जैसे संसार के प्राचीन नगरों की तरह काशी भी भारत वर्ष का प्राचीनात्मक नगरी है, और तथा संसार की ही सभ्यता और मनुष्य के विकास यात्रा के इस महान नगर का उज्जवल इतिहास भी रहा है। और इसीलिए हमारे जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जो हमारे
डॉक्टर विश्वनाथ करार जी हैं, वह इसी सिद्धि के तहत आज इस यहाँ वर्ल्ड पीस ऑफ यूनिवर्सिटी का ये सेमिनार आयोजित किए हैं। इसका आध्यात्मिक और भारत की संस्कृति की राजधानी है, जो हमारे महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कार्य क्षेत्र के रूप में विश्व के महान नगरी के शुमार हो रहा है। काशी विश्वनाथ महिमा संसार प्रसिद्ध है तथा यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यह आदिकाल से देवी ज्ञान और गलियार रहा है तथा आज भी हम इसी चेतना के तहत, इसी संस्कृति के तहत हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबे, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम में अपने डॉक्टर विश्वनाथ करार जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने आमंत्रित कर इस सेमिनार का एक भाग बनाने का जो अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम अपने तरफ से और अपने बिहार की जनता के तरफ से MIT पूना के प्रति आभार प्रकट करते हैं। एक बार ताली बजाकर डॉक्टर साहब का, और दोनों हाथ उठा के बोलिए हर 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 महादेव। धन्यवाद। Thank you very much, Shri Pramod Kumar ji, for your thoughts. And my friends, now it's time when I invite the next distinguished speaker of this session, a renowned social cultural revolutionist and Islamic scholar, Honorable Kalberu Shaid Rizvi ji. My friends, he was born on 8th of February 1976 and in the village located in the state of Bihar. He started his Islamic education at the early age of 6, and from his childhood only he was, I would say, probably he was one of the youngest students in the madrasa that he was studying in. My friends, after he completed his education, he went on to Jamhuri Islamic in Iran for his higher education, and after completing his course, he received numerous, I would say, rewards. By the grace of God, he can explain religious sermons and political debates, etc., to numerous people in languages like Arabic, Persian, English, French, Gujarati, Hindi, and Urdu, and of course, last but not the least, Bhojpuri. It is indeed our honor and privilege to have you today, sir. And on behalf of everyone, I would like to extend belated happy birthday to you, because it is just last 24 hours that we missed your birthday by. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप सबका। सलाम मोहब्बत और सलाम इज़्ज़त। आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाने वाले हैं। और पढ़े लिखे और पढ़ाने वाले में एक फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा किताब से पढ़ा लिखा बनता है और पढ़ाने वाला जिंदगी से पढ़ाने वाला बनता है। जनरली आप MIT से जितने जानते हैं, मैं कभी स्टेज पे जो मेहमान बैठे होते हैं, चूँकि वो खुद बहुत बड़े होते हैं, उनके नाम को ना भी लिया जाए तो उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज ये अपना उसूल तोड़ रहा हूँ, चूँकि मज़हब मुद्दा है हमारे यहाँ और वसुधैव कुटुंबकम हमारा मौजू है और सब इसी पे बोल रहे हैं। तो मैं सबसे आखिर से ही शुरू करता हूँ। मेरे भाई ऑनरेबल प्रोफेसर सुधीर साहब और मेरे भाई ऑनरेबल प्रमोद जी और मेरे भाई ऑनरेबल बसंत जी और मेरे भाई ऑनरेबल धर्म अधिकारी जी और आचार्य जी हमारे, और ख़ास तौर से वन एंड ओनली, मैं तो पूरा नाम भी नहीं लेता, कभी बड़े करात साहब कहता हूँ। हमारे यहाँ
एक बड़े करा साहब हैं, एक छोटे करा साहब हैं। कुछ लोग काम करके काम बनाते हैं, कुछ लोग काम करके जिंदगी बनाते हैं, कुछ लोग काम करके मुल्क बनाते हैं। इसे बदल दूं, आम भाषा में कहूं, कुछ लोग नाले खोदते हैं, कुछ नहरें बनाते हैं, कुछ नदियां बनाते हैं, कुछ दरिया बना देते हैं। विश्वनाथ करात न नाला बनाता है, न नहर बनाता है, न नदी बनाता है, दरिया बना देता है। और दरिया मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो हमारी देने वाली शक्तियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आसमान है, वर्षा है, जमीन है, फल है, शजर है, पेड़ पौधे हैं, ये किसी से उसका धर्म नहीं पूछती। ये जानती हैं इन्हें क्या देना है। आदमी अगर यही याद रखे कि उसे क्या देना है तो दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गुफ्तगू चेयरमैन ऑफ द सेशन की इजाज़त से और विश्वनाथ करात जी मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, और मेरे ही नहीं बल्कि इस मुल्क के बड़े और बुजुर्ग से शुरू करता हूँ। देखें, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है जब हम मज़हब की बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। मुसलमानों में इस्लाम की बात कर लो, हिंदुओं में सनातन धर्म की बात कर लो, अच्छे खासे पैसे की बात में तो हाथ नीचे रहता है, वो धर्म की बात आई तो यूं हो जाती है आस्तीन। हालांकि उल्टा है इसका, आप पैसे में अपने आस्तीन उठा लो, धर्म में आस्तीन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म आसमान से गिरता हुआ वो पानी है जो नालियों में नहीं बहता, फलों में जगह बना लेता है। वो अपना अस्तित्व खुद बचाता है। कोई धर्म वाला कभी दावा नहीं कर सकता कि मैंने ये धर्म बचाया है, कोई कभी भी दावा नहीं कर सकता। वो धर्म है जो आदमी को बचाता है। अब सवाल है कौन सा धर्म। तो देखिए, मेरी एक अपनी स्टडी रही है, मेरी एक अपनी सोच रही है। हो सकता है आप मेरे साथ हो सकता है आप मेरे साथ ना हो, जरूरी नहीं कि आप मैं जो कहूं वो माने। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान को इंसान की मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे सकती तो उसे भगवान का चेहरा भी नहीं दिखाई दे सकता, नहीं दिखाई दे सकता। ये जो धर्म का मकान है ना, ये जो आप इसे जो कह लीजिए, ये जो धर्म का मकान है, ये इंसानियत की जमीन पे होता है। अगर जमीन खोखली है तो मकान मजबूत नहीं हो सकता। जमीन का मजबूत होना जरूरी है। जमीन मजबूत होगी तो सब कुछ ठीक होगा। अब सारे लोगों ने, अगर आप किसी को भी बुलाएंगे तो सारे लोग स्पेशल बात करेंगे। मैं आपसे कोई स्पेशल बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां होती है। तो देखिए, प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से, चूंकि चेयरमैन ऑफ सेशन भी एक मजहबी रहनुमा है, वो ज्यादा मेरी बात को समझ सकेंगे और आगे भी बढ़ा सकेंगे। देखिए, प्रॉब्लम मौलवी से नहीं है, प्रॉब्लम साधु से भी नहीं है। हमारे समाज में एक शब्द है, उनके जैसा। इसे समझिएगा, उनके जैसा, साधु जैसा, मौलवी जैसा, पढ़ा लिखा जैसा। महसूस कर पा रहे हैं आप? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसी है? ये उन जैसा, वो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मौलवी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो साधु, मगर वो साधु जैसा है। ये सारी प्रॉब्लम जो किसी 2, 3, 4, 5 मजहब के दरमियान एक चमन में होती है, वो उन जैसों की होती है जो जैसा होने की वकालत भी करते हैं और दावा भी करते हैं। अब प्रॉब्लम समझिएगा। प्रॉब्लम यह है कि मुसीबत वहां आती है जो ना हो और बन बैठे। बाप ना हो और बाप बन बैठे, मौलवी ना हो और मौलवी बन बैठे, गुरु ना हो और गुरु बन बैठे, आचार्य ना हो और आचार्य बन बैठे, धार्मिक ना हो
और धार्मिक बन बैठे। ये जो बन बैठे हैं ना, ये बैठने वालों को बैठने नहीं देते। जो मेन चीज है, अब सवाल यह है कि हमारा अगला स्टेशन क्या हो सकता है। किसी भी टॉपिक का एक अगला स्टेशन होता है। तो एक बात मेरी जिंदगी में याद रखिएगा, हमारा सबसे ज्यादा फायदा जो धर्म के मुद्दों पे बात करते हैं, धर्म के मुद्दे पे जमा होते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा गिरोह उठा सकता है, ग्रुप उठा सकता है, पॉलिटिकल पावर उठा सकती है, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा हम देश को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? 2-3 जुमलों में मैं बात को शुरू करके और घंटी बजे इससे पहले खत्म कर दूंगा। देखिए, हमारी 2 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दी, एक जो ना हो बन बैठे और एक मौलवी नुमा और साधु नुमा। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब हम इससे मजहब के मामले से क्या कर सकते हैं? तो देखिए, गुरु बैठे हैं, मजहब एक तलाश का नाम है। किसका नाम है? तलाश का। मजहब एक तलाश का नाम है। तलाश किसकी? बनाने वाले की। मजहब एक तलाश का नाम है। मैं सब कुछ जो ग्रंथों में है ना, सारे ग्रंथों में सब जोड़ के, चूंकि बचपन से किताबी में जिंदगी गुजारी, 28,000 किताबें पढ़ ली, जो समझ में आया वो बता रहा हूं। मजहब एक तलाश है। किस चीज की तलाश? बंदे और ईश्वर के बीच की तलाश है। तरीके अलग अलग हैं, मगर मुलाकात अलग अलग नहीं है। जैसे आचार्य जी एक चिराग जलाएं, मैं एक चिराग जलाऊं, मिनिस्टर साहब एक चिराग जलाएं, हमारे सीनियर IAS ऑफिसर ये एक चिराग जलाएं, धर्म अधिकारी भाई एक चिराग जलाएं। आप मुझे बताएं, चिराग की जगह अलग अलग हो सकती हैं, उजाला अलग अलग नहीं हो सकता। उजाला सेम रहेगा। अपनी बात आखिरी शब्दों में खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। याद रखिएगा और याद रखिएगा, और फिर कहता हूं याद रखिएगा, सियासत की 4 अलग अलग पार्टियां पूरे 5 साल एक दूसरे को गाली देती हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सत्ता की कुर्सी संभाल लेती हैं। होता है कि नहीं होता है? मैं गलत बोलूं तो मुझे अभी बिठा दो कुर्सी से, ठीक है? होता है ना। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग MLA हैं, उनके अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं, अलग अलग नारे हैं, और शायद अलग अलग उनके पार्टी के वो भी हों, झंडे भी हों, ठीक है? मगर पता चला कि 10 किसी के आगे, 20 किसी के आगे, 50 किसी के आगे, सबने आखिरी रात फैसला किया भाई सत्ता तो करना ही है, तो सत्ता करें तो कैसे करें? तो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 2 लोग जमा हो गए और उन्होंने साहब सत्ता बना ली। जब 5 लोग कुर्सी के लिए एक हो सकते हैं, तो हम सब अपने भारत मिट्टी के लिए अलग नहीं हो सकते। हम सारे अलग लोग अगर भारत की माटी के लिए, अपने देश की माटी के लिए एक हो जाएं और एक होके अपने देश की खिदमत करें, तो यकीन जानिए, भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, और कल भी सोने की चिड़िया है। इन लफ्जों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। मजहब किताबों से अंदर नहीं आता, मजहब अंदर से नेकी बन के बाहर निकलता है। इसी बात को याद रखिएगा। मजहब यहां से पता नहीं चलता कि मस्जिद के अंदर कौन मुसलमान है और मंदिर के अंदर कौन हिंदू है। जब बाहर ठंडक में ठिठुरते हुए मुसाफिर के कंधे पे कोई कंबल डाल रहा है, तो पता चलता है इसने बाहर भी मंदिर बना के रखा है और बाहर भी मस्जिद बना के रखा है। आप सबसे खुदा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मौलाना कबीर शहद रिजवी जी का, कि इन्होंने बहुत ही, उनकी वो हमेशा से खासियत रही है कि बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात वो सबको डाइजेस्ट करवा ही देते हैं। तो बहुत फिर से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ And now friends, it's time when I invite the chairman of this session to address the gathering, the renowned scholar, sadhak and Himalayan yogi,
Honorable Swami Yogi Amarnath Ji to conclude and address the gathering. सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित और मेरे सामने जो प्रभु बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मुश्किल काम मुझे दिया गया है। 5 जो एक से एक बढ़कर महान वक्ता अपनी अपनी दिल की बात रखे हैं, उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा बोलना है और बचे समय में मेरा भी कुछ थोड़ा कहना है। तो सबसे पहले धर्माधिकारी साहब जो बहुत मशहूर है, महाराष्ट्र में चाणक्य संस्था चलाते हैं, उन्होंने जो बात रखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 2 मेथड्स इन सर्च ऑफ पीस। हमारी मेथड्स अलग है और वो नाम जैसे अधिकारी है, कहने के नाम में ही अधिकारी शब्द है, धर्म कहने के ही वो अधिकारी और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ उनके सामने। उसके बाद बसंत गुप्ता जी ने भी बहुत सुंदर कहा, जो कॉन्सेप्ट आत्मन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ा शब्द है आज। सेल्फ इंस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, लेकिन आएगी मात्र साधना से, अधिकतर ध्यान से, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं आएगी। उसके बाद हमारे बिहार के प्रमोद कुमार जी ने बहुत सुंदर कहा, एक शब्द में, एक वाक्य में, कंकर कंकर शंकर है, जो संस्कृत में है सत चराचर परिपूर्ण। इस धरती का, इस पूरे विश्व का एक एक कण शक्ति से भारित है। इवन द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल चार्ज्ड बाय द कॉस्मिक एनर्जी। उन्होंने कितने सुंदर शब्द में कंकर कंकर शंकर है में बताया। उसके बाद रिजवी साहब का नाम मैं रखूंगा, जोश साहब। वो जो जोश से कहते हैं, जो बातें कहते हैं, अपने आप दिल को छू जाती है। इट टचेस एवरीवन्स हार्ट। उन्होंने जो कहा, मुस्कुराहट में ही धर्म है। एक बच्चे की मुस्कुराहट होती है, वो बच्चा आपको कौन सी भला गिफ्ट देता है? कुछ देता नहीं। एक छोटी नन्ही सी मुस्कुराहट में आपको इतनी खुशी मिलती है कि बिना कुछ कहे वो बच्चा आपसे जुड़ जाता है। न बच्चा संस्कृत बोलता है, न हिंदी बोलता है, न और कोई भाषा बोलता है। ये भाषा प्रेम की है, ये भाषा दिल से दिल के जोड़ने की आंतरिक क्षमता जो हमें परमात्मा ने दी है। How one speaks without using any word, that's the language of our heart. We are all gifted by that language, but we never use it. अभी मैं थोड़ा सा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आपको कहूँगा। सुबह मैंने मॉडर्न रिसर्च के बारे में कहा है। विश्व गुरु भारत बनना प्रारंभ हो चुका, ये कोई सपना नहीं है, तो बात अभी मैं नहीं दोहराऊंगा। इट हैज ऑलरेडी बिगन, प्रोसेस हैज बिगन। एंड ये MIT यूनिवर्सिटी नहीं है, विश्वनाथ जी कराड़ की MIT ये परिवार है और ये यूनो का काम कर रहे हैं। विश्व शांति का जो काम है यूनो का है, वो एक यूनिवर्सिटी कर रही है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए अभिमान और गर्व की बात है। एक आश्रम में हिमालय के एक शिष्य गया, गुरु से पूछा, मैंने बहुत कुछ पढ़ाई की है, BA, MA, MPhil, फिलॉसफी, PhD तक किया है, सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, अलग अलग साधनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। कोई भी साधना हो, किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय की हो, सारे कुरान, गीता, बाइबल, वेद, जैन अवस्था, गुरुबाणी, सबका अध्ययन किया है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे तो सब में फर्क नजर आ रहा है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना, इसलिए आपके आश्रम में आया हूं, समझ में नहीं आता है।
मुझे तो चारों तरफ फर्क ही फर्क नजर आता है। किसे अपनाऊं, क्या करूं? एकेडमिक पढ़ाई भी बहुत हो चुकी है, मैं पीएचडी तक पहुंचा हूं। तब गुरु ने कहा 8-10 दिन रहो, कुछ दिन रहो। तो बीच बीच में जाकर पूछता, इतने दिन हो गए, आगे कुछ बताओ, इतने दिन हुए, आगे कुछ बताओ। फिर 15-20 दिन के बाद गुरु ने कहा, ये जो चलने का रास्ता है आश्रम की ओर, छोटी पगडंडी थी, उसमें कुछ पौधे पैदा हुए थे। सम प्लांट्स वेर ग्रोन ऑन देयर वॉकवे टुवर्ड्स आश्रम, तो लेट अस मेक इट क्लीन एंड नीट पाथवे। ये प्लांट्स को हम रात को हटा के सही जगह लगा देते हैं। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, ये मालिक का काम है, मैं तो पीएचडी हूं, बट अभी आया हूं। कहा मेरी पीएचडी, कहा ये मालिक का काम। शिष्य ने कहा, ठीक है, सब मदद करते हैं, मैं भी करूंगा। तो उन्होंने अमास की रात चुनी, जब चांद का भी प्रकाश नहीं होता है। सारे पौधे निकाले, उनको काले वस्त्र में ढक दिया। ही कवर्ड ऑल द प्लांट्स विद ब्लैक क्लॉथ। सारे मूलियों को साफ करते करते बताया, देखो मूलियां कैसी है। शिष्य ने, ठीक है, मूलिया जैसे मूलिया, उसमें क्या है भाई। उन्होंने कई मूलियों को साफ किया और शिष्य को पूछा, ये सभी मूलियों को देखते हुए आप ये पहचान सकते हैं क्या कौन सी मूली किस पौधे की है? लुकिंग एट द रूट्स विच आर इंटरट्वाइंड among themselves underground, can you make out which is the root of which plant? उन्होंने कहा, नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सभी समान दिख रही है और सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। तब गुरु ने कहा, सारे धर्म पंथ संप्रदाय एक ही है, ऊपर का जो रूप तुम देखते हो वो अलग है। सभी इंसान एक ही तत्व से बने हैं, ऊपर का जो रूप है वो अलग है। इनर इसेंस इज सेम, आउटर फॉर्म्स आर डिफरेंट, सो डू नॉट फोकस ऑन आउटर फॉर्म, फोकस ऑन इनर इसेंस। हम धर्म की गलत धारणाओं में फंसे हैं और कुछ नहीं है। धर्म का जो गीता में एक ही शब्द में कहा है, निहित कर्म धर्म न्याय नीति से जो कर्म हमें दिया गया, ड्यूटी कर्तव्य, वो हमें निभाना चाहिए। हमने उसको अलग अलग लेबलों में बांट दिया है और कुछ नहीं है। कभी आपने सुना है जैन ऑक्सीजन, हिंदू नाइट्रोजन, मुस्लिम फायर, ये कभी सुना है? ये हो नहीं सकता। ये तत्व, इट हैज गॉट इट्स ओन लॉज एंड बायलॉज। अग्नि चाहे बच्चा हो, उसकी उंगली जला के ही रहेगा। फिर ये नहीं देखेगा जैन बच्चा, हिंदू मुस्लिम सिख कौन है। उनके अपने तत्व है, ये तत्व अपने नियम से ही चलेंगे। सृष्टि के अपने नियम है, हमारी धारणाएं गलत है। उसका कारण है हमें, मैं किसका नाम नहीं लेता, पंडित पांडे, पुजारी, मौलवी, पादरी, हमको कभी कभी किसी ने मिसगाइड किया है। ये हकीकत है, सच्चाई से, सत्य से दूर रखा है, तो हम गलत धारणाओं में फंस गए। बाकी कोई कारण नहीं है। जैसे सत्य का दर्शन होगा पता चलेगा। अब कोई कहेगा बाहर रात है, हमें मालूम है बाहर रात नहीं है, बाहर जाएंगे उजाला है। इतना सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वी वर मिसगाइडेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये भ्रांत धारणा है। धर्म अध्यात्म में कभी विरोध हो ही नहीं सकता। कैसे विरोध हो सकता है? ये तो एक ही पंछी के दो पंख है, एक पंख से पंछी नहीं उड़ सकता। चाहे दाया काटो या बाया काटो, बात तो एक ही है। तो दोनों की जरूरत है पंछी को उड़ने के लिए। विज्ञान के साथ धर्म अध्यात्म का जुड़ना अनिवार्य रूपेण जरूरी हमारे अस्तित्व के लिए। क्या शेक्सपियर पढ़ने के लिए हमें कैथलिक होना पड़ेगा? ऐसे जरूरी है? क्या कालिदास पढ़ने के लिए किसी को हिंदू होना पड़ेगा? और उमर खयाम पढ़ने के लिए क्या किसी को मुस्लिम होना पड़ेगा?
ये तो हमारी गलत धारणाएं है। ये तो साहित्य की बात है। अध्यात्म शास्त्र साहित्य की बहुत परे है, ऊपर है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं आचार्य विनोबा भावे का, जिन्होंने उर्दू का स्वयं अध्ययन के कुरान सार लिखा है। बाइबल पढ़ के बाइबल सार लिखा, इसेंस ऑफ बाइबल, इसेंस ऑफ कुरान आफ्टर रिगरस स्टडी, तब वो आचार्य कहने के काबिल हुए। लेकिन एक बात है कि जैसे अभी रिजवी साहब ने कहा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वही अनपढ़ी बात कहते हैं, इसलिए गलत धारणाएं फैल जाती है समाज में। तो जैसे मैंने सुबह का वही कहूंगा, इसमें रिसर्च की जरूरत है, अनुसंधान की जरूरत है, विज्ञान में भी और अध्यात्म में भी। इस वसुंधरा पे हमको समय की धारा में हम बीच बीच में सत्य को भूलते हैं। इंसान पैदा हुआ तब से वो अकेला नहीं है, तब भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं। We are never alone, we were never alone, we are always one family. ये तो हमारी धारणाएं क्या अलग है। So may I reminded the dream of India's great saint ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने कहा, हे विश्वची माझे घर। So where there in India we call, दिल से धर्म पैदा होता है। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. Jai Jagat. May the universe be happy. बहुत बहुत शुक्रिया योगी अमरनाथ जी और सभी मान्यवर जो इस सत्र में सहभागी हुए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी हम एक छोटा सा खाने का अंतराल लेंगे। लंच के लिए आप सभी से विनती है कि सुबह हमने जहां ब्रेकफास्ट लिया उसी जगह पे हम लंच लेंगे। अगला सत्र दूसरा, रियलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी, द फिलोसॉफी ऑफ साइंस, ओम टेंड्स टू ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र अब हम लंच के बाद अनुभव लेंगे। My friends, I request you to please assemble. It is 1:15 p.m. We will assemble back at 2:15 p.m. Okay, so please, it's a sincere request that we will take a lunch break now for 1 hour and assemble back at 2:15 p.m. sharp. Thank you very much.